we also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. वो हिलरी जब गद्दाफी को मार दिया था ना, तो ये हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट था. आप सोचो अगर ये प्रेसिडेंट बनती तो ये ट्रम्प से 10 गुना खतरनाक थी. ये जनरल वेस्टी क्लार्क है, वो बोलते कि 9/11 के बाद कौन से देशों पे हमला करने का प्लान था वो बताइए. आइए. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. ये एक्स फॉरेन मिनिस्टर है फ्रांस के,
ये 2009 की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटेन और दूसरी कंट्री सीरिया में वॉर की तैयारी कर रहे हैं. Purger, puis c'est ce qu'on entend sur le plateau. Oui. Vous êtes d'accord avec ce côté binaire ou c'est plus compliqué que cela? C'est très compliqué du fait de l'agrégation de tout le monde qui est là, évident. Mais en substance, c'est ça. C'est deux camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but hein? Excusez-moi, dans quel but? L'idée de le renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Frédéric Elbit. मतलब ये रोलांड डुमास के जो आप पढ़े होंगे वो क्लियरली बोलते हैं कि ये जो वॉर हो रही है वो पूरी प्लान्ड एंड कंसीव्ड इसराइल में हुई है. मतलब वेस्ली क्लार्क ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, रोलांड डुमास इसराइल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये दोनों सत्य है. ये जो माइकल फ्लिन है, जब ट्रंप की सरकार आई थी तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पहले बने वो माइकल फ्लिन बने, और माइकल फ्लिन 6 महीने पहले बोल गए थे कि ये पूरा आईसिस अमेरिकी सरकार ने, व्हाइट हाउस ने बनाया. ये टीवी पे बोल रहे. In 2012, your agency was saying, quote, the Salafists, the Muslim Brotherhood and Al-Qaeda in Iraq are the major forces driving the insurgency in Syria. In 2012, the US was helping coordinate arms transfers to those same groups. Why did you not stop that if you're worried about the rise of quote-unquote Islamic extremism? I mean, I hate to say it's not my job, but my job was to ensure that the accuracy of our intelligence that was being presented was as good as it could be. And I will tell you, it goes before 2012. I mean, when we were in Iraq, and we still had decisions to be made before there was a decision to pull out of Iraq in 2011. I mean, it was very clear what we were going to face. Well, I admire your frankness Very on this clear subject. what we were going to face. Let me just before we move on, just to clarify once more. You are basically saying that even in government at the time, you knew those groups were around, you saw this analysis, and you were arguing against it. But who wasn't listening? I think the administration. The administration turned a blind eye to your analysis. I don't know if they turned a blind eye. I think it was a decision. I think it was a willful decision. A willful decision to go support an insurgency that had Salafists, Al-Qaeda, and a Muslim willful Brotherhood. decision to do what they're doing, which you have to really ask the president, what is it that he actually is doing with the policy that is in place, because it is very, very confusing. I'm sitting here today, Mehdi, and I can't tell you exactly what that is, and I've been at this for a long time. टोयोटा वाला देखो, कौन फंडिंग आइसिस किधर, कौन सा वाला देखा आपको? हाँ, ये भी वाला. So, here you go. Already, the meeting in the White House over 2 years ago, everyone in the National Security Team recommended arming ISIS. And there you go. The whole National Security Team recommended arming ISIS. Need I say more?
top of that, I am concerned about this report about Syrian rebels and the ceasefire with ISIS. Senator But that's Paul, not true. Well, it's not true. You want me to read true. from the, Whether I don't care about the report. I know these people intimately. We talk to them all the time. I know these people intimately. We talk to them all the time. It's a disaster, and here's the thing. We've been funding people who are allied with ISIS. ISIS is stronger because we've been funding Islamic rebels in Syria. It's a big mistake. It's a big mistake. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. We funded. दूसरी वीडियोस है मगर आई थिंक वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। नहीं ये सब नेट पे अवेलेबल है, वहाँ से जी। तो कीजिए शुरू, वो माइक इनको। ऑयल एंड इजराइल, ऑयल एंड इजराइल। बैठ के भी बात कर सकते हैं। नहीं मैं खड़ा होकर खाना हजम हो जाएगा। हाँ। No, but for instance, Hillary, how does she have the courage of agreeing to it on TV or in the interviews on Al Jazeera or whatever? No. Hillary was talking in an internal Senate hearing. Okay. वो रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। और पॉइंट क्या है कि जब आप दुनिया पे राज कर रहे हो और आपके सामने कोई चुनौती नहीं है तो आप खुलकर बात कर लेते हो कि भाई हम लोगों ने तो किया था, उखाड़ लेना क्या उखाड़ लो। दैट इज़ हाउ जॉन मैकेन इज। ओके, वो बोल रहा है कि हम लोगों ने आईसिस को फंडिंग किया है। माइकल फ्लिन जो उनका डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस था, उसने तो बोला था कि मैंने व्हाइट हाउस को वार्न किया, और व्हाइट हाउस तो वो बोले कि व्हाइट हाउस ने गलती की। तो माइकल फ्लिन बोलते कि इट वॉज अ विलफुल डिसीजन, ये निर्णय किया गया था कि इनको सपोर्ट करना है। ओके, और ये सब इनके अखबारों में, टीवी डिबेट्स, ये सब हुआ है, मगर आई कांट बिलीव दैट वी डोंट डिस्कस ऑल दीस थिंग्स। यस, हाँ माइक। मेरा नाम द्वारकानाथ कलंत्री। तो अभी जो साजिश हो रही है, जो अब हम देख रहे हैं, तो ये जो देश के लोग उनको उनके पास नहीं जाता है क्या? जैसे अभी जब सब लोगों का जो इम्प्रेशन है, मानना है कि ये आईसिस बोला तो ये इस्लामिक लोग कर रहे सब, तो उनको ये क्यों नहीं समझाया जाता कि ये आईसिस या धर्म का नहीं है, ये जो रिश्ता है ये इकोनॉमी का है या कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो इसका प्रबोधन क्यों नहीं होता है ऐसा? ये धर्म का भी है, हम लोग ये गलती ना करें, ठीक है। इसमें आर्थिक सवाल भी है, राजनीतिक सवाल भी है, और धर्म का भी मामला है। ओके, जो लोग आईसिस में जा रहे हैं उसमें जिहाद का भी एजेंडा बहुत क्लियर है। ओके, जैसे मैंने, हाँ नहीं मार खाएंगे तो ख़त्म हो गया ना, अभी ख़त्म ही हो गया वैसे इराक सीरिया में, तो वो एक अलग बात है। पॉइंट इस के ये किस्म की जो टेरर आर्मीज़ है, अगर जो स्टेट की ताकत उनके पीछे खड़ी है, ओके, अगर वो स्टेट की ताकत पीछे हट जाती है तो फिर वो छोटे मोटे ग्रुप्स बन जाते हैं। ओके, मगर जब सऊदी और कतर और कुवैत आपको फंडिंग करेगी और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका आपको हथियार देगी, तो फिर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। ओके, मगर इसमें धर्म का जो एजेंडा है वो है, और ये जो क्लैश जो चल रही है वो उसमें एक धार्मिक एलिमेंट भी है। ओके, यहूदियों का अपना एक एजेंडा है, और वो एक यहूदी एजेंडा है, इस्लामिक एजेंडा है, क्रिश्चियन एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, म्यांमार में एक बुद्धिस्ट एजेंडा है, ये सबका एजेंडा है अपने अपने हैं। इसलिए धर्मों के अंदर जो लड़ाई हम लोग को करनी है और खुलकर बात करनी है, ठीक है,
वो भी एक सवाल है हमारे सामने। जैसे मैं आपको बता दूँ, आई जस्ट कम टू दैट पार्ट। अभी मिडल ईस्ट में जो बड़ा क्राइसिस है, तेल ऑयल ये सब है, ठीक है, मगर उसमें और एक मैटर है जो भी हम अनवर भाई और हम लोग बाहर बात कर रहे थे। कुरान में एक कंसेप्ट है धिम्मी का। धिम्मी का मतलब है प्रोटेक्टेड सिटीजन, इक्वल सिटीजन नहीं। आप समझ रहे? अभी जब कुरान आया 1400-1500 साल पहले, और अब जब आपने एक देश पे राज किया तो जिस लोग ने आपने वो देश पे आपने कब्जा कर लिया तो वो आपके प्रोटेक्टेड सिटीजन ही बनते थे, वो सभी के राज ऐसे ही चलते थे। तब तो कोई इक्वल सिटीजनशिप राइट्स का संकल्प कहीं भी दुनिया में नहीं था, ठीक है। मगर आज अगर इराक एक शिया राष्ट्र बन जाए और सुन्नियों को प्रोटेक्टेड धिम्मी बना देगा तो वो राष्ट्र रहेगा नहीं, वो टूटेगा, ठीक है। और अगर वहाँ भी अहमदिया और शिया और जो सुन्नी दरगाह पे जाते हैं उनको वो काफिर बोलेंगे तो वो देश टिकेगा नहीं। फिर आपको जो मानना है नहीं मानना है वो अलग बात है, मगर आपके देश में जो भी लोग रहेंगे वो इक्वल सिटीजन है, सभी धर्मों को या विचारों को समान स्थान है, तो वो कुरान का रिफॉर्म का सवाल है, वो कुरान का रिफॉर्म का सवाल है। आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। क्योंकि दूसरा जो एक मैटर है बहुत सिंपल मैटर है और वो रिफॉर्म हो चुका है। जिससे जंग होती थी और स्लेव्स बनते थे, आपने कैप्चर कर लिया, जो आगे आपके हाथ में वो आपके स्लेव्स बन गए। तो कुरान में स्लेवरी इलीगल है, सेक्स स्लेवरी भी इलीगल है। ये सब चीज़ें हम लोग वापस पढ़ने लगे। अनवर भाई को पहले मुझे नहीं पता था, 2011-12 में और बाद में ये सब जो चीज़ें सामने लगी, भाई आईसिस बोल रहा है कुरान में अलाउड है, मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं कौन सा कुछ अलग कर रहा हूँ। स्लेवरी अलाउड है, मैं स्लेव बना रहा हूँ यजीदियों को, ये जो लोगों को वो पकड़ रहे थे उधर। और जो औरतों को हम लोग लेके जा रहे हैं और उनके साथ शादी नहीं करना वो हमारा मामला है भाई, मगर ये सब अलाउड है। तो रिफॉर्म का मामला है, आपको कुरान की कुछ चीज़ें भी रिफॉर्म करनी पड़ेगी। और अभी हाल ही में 1 महीने पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, तुनिसिया में जो रिफॉर्म हुआ है कि औरत और मर्द को अभी प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलेगा। कुरान में 1 तिहाई है ना, 1 तिहाई है, तो अभी बेटा बेटी होगी तो बाप को दोनों को 50-50% देना पड़ेगा। तो कुरान का भी रिफॉर्म हो रहा है, ओके। और उसमें जो और एक बात है कि एक मुस्लिम मर्द ही एक नॉन मुस्लिम औरत के साथ शादी कर सकता है। तुनिसिया की औरतों ने बोला भाई ये अधिकार खाली मुस्लिम मर्दों को, क्यों हम भी नॉन मुस्लिम मर्दों से शादी कर सकते हैं, तो वो भी सरकार उनको करके दे रही है। तो तो कुछ कुरानी कंसेप्ट का रिफॉर्म हो रहा है, शरीयत बरत को तो छोड़ो, ओके। इतनी चेंजेस आ रहे हैं। और पिछले साल में 2 सालों में चाहे वो हाजी अली दरगाह का मूवमेंट जो चला था, जिसको हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जीते, जाकिर नायक के सामने जो हम लोग ने संघर्ष किया, और अभी जो ट्रिपल तलाक पे जो जजमेंट आया, मुस्लिम समाज का दिमाग अभी खुलने लगा है। इसलिए जब भी आप बात करोगे तो बहुत सारे कॉन्जर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस में भी अभी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का विरोध करने लगे। पहले तो बोलता है कि तीर से बांध छूट गया तो हो गया, तलाक 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 बोल दिया तो हो गया। अभी वो सब बेवकूफ़ी की जो बात है वो कम होने लगी है, ओके। अभी आप लोगों को हलाला मालूम है? कुछ लोगों को मालूम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक बार मैंने बहुत बड़े अपने एडिटर दोस्त है समाजवादी मूवमेंट के ही, मैंने बोला ये हलाला का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोला क्या हलाला का क्या प्रॉब्लम, हलाल मीट तो हम लोग खाते हैं। मैं बोला हलाल मीट मटन की बात नहीं हो रही है भाई ये अपने हाल है, ओके। हलाला का मतलब क्या है कि मान लो कि आपने तलाक 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 बोल दिया, ओके। आपको अगले दिन आपने दारू में पीकर बोला, भड़क गए थे वगैरह वगैरह, और अगले दिन आप उठे और यार ये तो गलती हो गई, बीवी बोली यार तूने क्या कर दिया, बोले तलाक हो गई, अभी क्या करें। बोलो काजी के पास, काजी के पास जाते तो बोला यार तलाक 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 बोल दिया, हो गई, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता है। दोनों बोलते यार कुछ तो करो, बोला हलाला करो। तो हलाला का मतलब ये है कि जिस बीवी की तलाक हुई है उसको और किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ कुछ रातें गुजारनी पड़ेगी, वो उसको तलाक देगा, बाद में वो वापस अपने शौहर के पास आएगी, उनका वापस निकाह होगा। तो इतना ये गड़बड़ वाला मामला है। तो काजी बोलते हैं एक काम करो मेरे साथ ही हलाला कर लो, ठीक है। तो मालेगांव का कौन है भाई इधर? मालेगांव में ये बहुत होता है ना, मालूम है कि नहीं? अच्छा बहुत साल हो गए। एक हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं इसमें लॉजिक क्या है मालूम है क्या, कि जो मर्द लोग तलाक 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 बोलते हैं ना, उसको रोकने के लिए, उनको सजा देने के लिए वो औरत का हलाला होना चाहिए। मैं बोला वो औरत का सैंक्टिफाइड धार्मिक बलात्कार हो रहा है, ओके। हलाला करना है तो जिस मर्द ने हलाला दिया है ना तलाक, उसका और काजी का हलाला कर लो, ये धंधा ही बंद हो जाएगा।
ठीक है, सब लफड़े बंद हो जाएंगे। अभी काजी गे निकला तो वो तो गया, बोला करना ही पड़ेगा बेचारे को। सो द पॉइंट इज दैट ये जो संघर्ष चले, अभी मैं जाकिर नाइक वाला भी मामला बता दूं। मेरा पहला झगड़ा हुआ था जाकिर नाइक से 1993 में, ओके, इतना पुराना खुन्नस है उसके साथ। तो हुआ था क्या कि बम्बई के दंगे वंगे हो गए 92-93 के। हमारा जो सर्वोदय का ग्रुप था, राष्ट्रीय संगठन, और जो हमारे गांधी बुक सेंटर वगैरह वाला ग्रुप, हम लोगों ने, सब लोगों ने किया था, हम लोगों ने भी काफ़ी काम किया था, 3-4 महीने लगे थे। उसके बाद हम लोगों ने 2 मुस्लिम कॉलेज की एक शिविर की थी, महाराष्ट्र कॉलेज, अकबर पीरवाई कॉलेज की, और उसमें इस्लाम और इसको लेकर कुछ गड़बड़ हो गई। तो बोले यार तुम लोग को कुछ अता पता नहीं है, हम लोग वक्ता लाते हैं, तुम लोग जगह तय करो। तो हम लोगों ने मनी भवन में किया, गांधी जी के घर पे। आ गया है जाकिर नाइक, हमको पता भी नहीं जाकिर नाइक कौन। तो जो 3 महीने से हमारे सर्वोदय के नौजवान साथी मेहनत कर रहे थे, और ज़्यादा करके मुस्लिम इलाकों में रिलीफ पहुँचाना, उन इलाकों में रहना, 15 मिनट में जाकिर नाइक ने ऐसा माहौल बना दिया कि इट वॉज फ्राइटनिंग। क्योंकि उसने सीधा का सीधा बोल दिया इस्लाम अकेला सही धर्म है, बाकी के सब धर्म शैतान के ये है वगैरह वगैरह, इस्लाम कबूल करो वाला चक्कर है, सीधा का सीधा। अभी वो ज़्यादा सोफिस्टिकेट हो गया, टाई वाई पहनता है, अंग्रेजी ज़्यादा अच्छा बोलता है पहले से, मगर दिमाग तो वही है, ठीक है। मगर पॉइंट इज़ वही टाइम पे उसके साथ झगड़ा हो गया था, और होते होते ये बहुत बड़ा टीवी जाम वाम, सऊदी फंडिंग, 5,000 का पंडाल भी डालेगा तो पूरा का पूरा इसी वाला, इस किस्म का इतनी ताकत बन गई। फ्राइटनिंग क्या, हम लोग जो बोलते थे कि गरीब, अनएम्प्लॉयड, ये वगैरह वगैरह, जो जाकिर नाइक के लेक्चर्स के लिए जाते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर वाले बंदे, और वही तालियां मार रहे हैं। तो खाली अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी का सवाल नहीं है, किस किस्म की शिक्षा जा रही है वो बहुत बड़ा सवाल है। किस किस्म की शिक्षा के वैल्यू सिस्टम है, वो सेक्युलर है, समता और बंधुत्व की बात हो रही कि नहीं, वो वाली बात सवाल है। और धर्म को हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं या मेरा धर्म सुप्रीम है, वो वाली बात हो रही है, ओके। सो बाद में जाकिर नाइक को लेकर जो बात हुई, और जो हमारे दोस्तों के, क्योंकि जाकिर नाइक को आतंकवाद में कोई मतलब नहीं है, उसमें नहीं फंसा सकेगी सरकार। जाकिर नाइक वापस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो हवाला में फंसा है, उसका बहुत सारा मनी ट्रांसफ़र, इसलिए वो वापस नहीं आ रहा है। वो इस्लाम का भी उसको लेना देना नहीं है, ओके। मगर जो जाकिर नाइक और जो उसके साथी आर्टिकल 25 और 26 की बात करे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रीच, वर्शिप, एक वीडियो है जाकिर नाइक का, ओके। एक पाकिस्तानी एंकर उसको इंटरव्यू कर रहा है, पाकिस्तानी एंकर समझदार है, वो जाकिर नाइक को बोल रहा है कि जिस देश में आप हो, ठीक है, वहाँ तो डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म वगैरह वगैरह, सभी धर्म, एक इस्लामिक राष्ट्र में दूसरे धर्मों का स्थान क्या होगा। तो जाकिर नाइक बोलता है कि जो हिंदू और क्रिश्चियन होंगे इस्लामिक देश में, उनको अपना धर्म की जो इजाज़त होगी प्रैक्टिस की, खाली अपने घरों से होगी, वो मंदिर और गिरजाघर भी नहीं बना सकते, ओके। फिर प्रीच और कन्वर्जन की बात बोले, प्रीच ब्रीच क्या होता है, इस्लाम ही खाली 2+2 4 होता है, बाकी के सब धर्म 2+2 5 7 11 वाला के चक्कर होता है। मतलब ये इडियट को फिलोसफी, रिलीजन और मैथमेटिक्स का फ़र्क नहीं पता। मैथमेटिक्स होता है, फिलोसफी और रिलीजन कुछ और होता है, वो 2+2 4 नहीं होता, ठीक है। मगर ये पॉलिटिकल इस्लामिस्ट जो भारत की डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म और हमारे संविधान का फ़ायदा ले रहे हैं, ओके, वो धर्म प्रचार कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 25-26 उनको इजाज़त देता है। मगर जब एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तो प्रीच और कन्वर्जन का अधिकार खाली इस्लाम को होगा और किसी धर्म को नहीं होगा। ये कौन सा भैया तुम्हारा मामला है। तो तब मैंने वो जाकिर नाइक वाले दोस्तों को बोला कि भाई तुम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, भारत का संविधान, रोज नारेबाजी चल रही है, ओके, मगर तुम लोग जाकिर नाइक के साथ क्यों खड़े हो भाई। आतंकवाद छोड़ो, इतने तो उससे तो ज़्यादा आतंकवादी जितने जाकिर नाइक को नहीं फॉलो करते वो मोदी के ट्विटर पे फॉलो करते, उससे कुछ बनता नहीं बात, ओके। सो एनीवे दैट इज़ द पॉइंट। एनीवे आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। Yes. Is Jerusalem playing any part in this? सेंट्रल रोल इसमें देखिए, जिस पे हम लोग और एक चीज़ पे बात नहीं करते हैं वो क्रिश्चियन जायनिज्म, ठीक है। हम लोग जायनिज्म की बात करते हैं, जूइश जायनिज्म लेकर चलते हैं, मगर जो 18th सेंचुरी में जो क्राइसिस आई वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की क्राइसिस थी, ओके। क्योंकि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी अब सब लोग मानते हैं मेहदी आएगा, मसीह आएगा, मैत्री आएगा, कोई ना कोई आएगा भाई जो दुनिया के हाल कर करके उन्हीं को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हम तो कर नहीं पाएंगे। तो पॉइंट इस के क्रिश्चियन जायनिज्म का मानना है कि क्राइस्ट दूसरी बार आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट क्रिश्चियंस करते हैं, मुसलमान मेहदी की बात करते हैं, ठीक है, फिर मैत्री की बात होती है और जो भी बात होती है। तो पॉइंट इज के जीसस कब आएंगे,
अभी जब उनको आना ही आएगा, मगर ये लोग ने उसका प्लान बना दिया है, ठीक है। मतलब पिक्चर में एंट्री कब होगी, विलेन कब आएगा और उसके बाद हीरो कब आएगा, ये लोग ने सब सेट कर दिया है। डायरेक्टर पूरा बन गया क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट चर्च। तो हुआ क्या, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट का क्या मानना है कि जीसस क्राइस्ट तभी आएंगे जब एंटी क्राइस्ट आएंगे। मतलब अमिताभ बच्चन आने के पहले शक्ति कपूर का आना है, ठीक है ना। तो शक्ति कपूर कब आएगा, एंटी क्राइस्ट कब आएगा। एंटी क्राइस्ट तभी आएगा जब इजराइल फिर से वहाँ बनेगा। आप समझ रहे, जब जूस दुनिया के वहाँ जमा होंगे। इसलिए ब्रिटिश एम्पायर में ये पूरा इजराइल बनाने का जो प्लान बना वो ब्रिटिश एम्पायर में बना, ओके। ये 1830 से 1840 की बात है। और उसमें से ये बात बनी कि इसलिए क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म का जो मॉडर्न फॉर्म है उसके बाद जूइश ज़ायनिज़्म वापस आता है। और उसके बाद 1895 अर्ली लेट मतलब 1905 में बहुत दंगे हो गए थे लंदन में भी, क्योंकि यहूदी मार खाते खाते पोलैंड रशिया से सब वेस्टर्न यूरोप की तरफ आ रहे थे। तब 1905 में ये बात बनी कि अभी इन लोग को लेके जाओ यहाँ से, इनको इजराइल वो पैलेस्टाइन ले लो और दे दो। 1914-17 की जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, अभी ये 100 साल होने वाले उसके, बाल्फोर डिक्लेरेशन का आपने सुना होगा शायद। बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 की जो फंडिंग हुई ना वॉर की, वो जूइश बैंकर्स ने ब्रिटिश एम्पायर को दिया। जब वर्ल्ड वॉर 1 जीते तब रानी ने एक लेटर जारी किया कॉल्ड द बाल्फोर डिक्लेरेशन। उसमें लिखा कि दी हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट विल क्रिएट ए जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। मतलब आपने हमको फंडिंग किया वर्ल्ड वॉर 1 का, तो हम आपको पूरा एक देश दे रहे हैं। ये है वो 1917 9 नवंबर का डॉक्यूमेंट है, या 2 या 9 नवंबर का, मतलब उसके 100 साल होने जा रहे हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन को लेकर। और पैलेस्टीनियंस और जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है यूरोप में, वो बोल रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को उसका माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो लेटर शुरुआत थी ये पूरे प्रॉब्लम को लेकर, ओके। एनीवे जेरूसलम पे वापस आते हैं। तो एक तो है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट लाइन कि सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस तभी होगा जब एंटी क्राइस्ट आएगा। अभी एंटी क्राइस्ट कौन है, एंटी क्राइस्ट होगा जूइश मसीहा। जो शक्ति कपूर होगा वो एक यहूदी होगा, नॉट द मुस्लिम्स, नो, ओके, ठीक है। तो अभी जूइश मसीहा तभी आएगा जब टेम्पल ऑफ सोलोमन वापस बनेगा। अभी टेम्पल ऑफ सोलोमन का सुना है आपने, हैकल सुलेमानी जिसको बोलते हैं, टेम्पल ऑफ सोलोमन। टेम्पल ऑफ सोलोमन कहाँ बनेगा, उसकी जगह पे 2 मस्जिदें खड़ी है, अलग सा मस्जिद और वो जो गोल्डन डोम मॉस्क है, डोम ऑफ द रॉक, ओके। तो वो जो अयोध्या का मामला है ना, वो एक्चुअली इंटरनेशनल अयोध्या उधर है, ओके। तो मंदिर वही बनाएंगे का जो नारा इधर का है, वहाँ भी मंदिर वही बनाएंगे का नारा है, ओके। तो ये 2 मस्जिदों के नीचे का, मैं इजराइल पैलेस्टाइन जा चुका 99 में, तब तो मैं खाली पिलग्रिमेज पे गया था। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को मिला था पैलेस्टाइन, अभी तो नेट पे अवेलेबल है, तब वो नहीं था। मगर दोनों मस्जिदों का जो फाउंडेशन है उन्होंने निकाल दिया है, मिट्टी नहीं नीचे, खाली खंबे नीचे है। जिस दिन उनको गिराना है दोनों मस्जिदें गिरा देंगे वो लोग। इस पर काफ़ी हमले भी हो चुके हैं, वो सही टाइम ढूंढ रहे हैं कि वो लोग को दोनों मस्जिदें कब गिरानी है। अपने यहाँ तो अभी पत्थर ब्रिक ये सब बना रहे, वहाँ तो शिलान्यास विलान्यास सब बना के तैयार है, वहाँ उठाओ और वहाँ डाल दो, ऐसा सिचुएशन है, ओके। भी टेम्पल ऑफ सोलोमन बन गया, उसके बाद जो यहूदी वहाँ बैठेगा वो क्रिश्चियंस के लिए एंटी क्राइस्ट होगा, ओके। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट आएंगे, और जीसस क्राइस्ट जूस को बोलेंगे भाई तुम लोग सब क्रिश्चियन बनो, नहीं तो मैं तुमको सब मार डालता हूँ। तो इट इज़ अ मैड आइडियोलॉजी। क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म जूस के लिए खुद बहुत खतरनाक मामला है, मगर ये एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी मियाँ भाई को पीटने के लिए। ये सब चल रहा है, मियाँ भाई को पता ही नहीं क्या हो रहा है इसमें, मार वो दूसरे से मार खा रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, सब चल रहा है उनका भाई, बताइए। तो जेरूसलम इज प्लेइंग अ वेरी सेंट्रल रोल इन दिस आई थिंक। थैंक्स। इस्लाम की जो रोहन गायकवाड़, इस्लाम की भविष्यवाणी है कि उस गांव में युद्ध होगा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, और सब जगह इस्लामिज़म आएगा, और बाद में गज़वाए हिंद, मतलब शेवट आखिरी हिंद की आईसिस उसी तरफ बढ़ रही है ना। सही बात है, सही बात है। मैं एक बार मेरे गांव में था, मेरा गांव है गोधरा, ओके, गोधरा, डरो मत, यही तरीका ओके।
हाँ बराबर है। तो मैं गया था वहाँ, कुछ नौजवान मुसलमान और वहाँ से बात हो रही थी एंड बहुत सारी बात हुई, भारत का डेमोक्रेसी सेकुलर हमारा संविधान हमारा बचाएगा वगैरह वगैरह। तो एक बूढ़ा आदमी 70 साल प्लस बोला संविधान कुछ नहीं, गजवा हिंद होगा, सीरिया से आर्मी आने वाले हमको बचाने के लिए। मैं सलाह देख रहा हूँ साला ये गोदरा गाँव में बैठा है गोड्डा, सीरिया से आर्मी आने वाली है। तब आईसिस वाइसिस कुछ नहीं है, मैं 2009-10 की बात कर रहा हूँ। ओके, ये गजवा हिंद का जो मामला है वो 2009-10 में काफ़ी चला था पाकिस्तान में, कि कुछ हदीसें है ओके जो बोलती है कि इस्लाम की आर्मीज आएगी हिंदुस्तान पे इन्वेट करेगी और जितने मुसलमान वो आर्मी में सबको डायरेक्टली जन्नत। ओके लफड़ा ही उसमें। ओके, तो ये गजवा हिंद वाला देखिए, एक्चुअली ये सब हमारा राज वगैरह वगैरह वो सभी धर्मों का प्रॉब्लम है। ओके, बाबा रामदेव योगा करके करेंगे, दूसरा लोग गजवा करके करेंगे, खाली इतना ही फ़र्क है, मगर सबको अपना अपना राज पूरे दुनिया पे फैलाना है। ओके, बट आई ऑल्सो कम टू समथिंग मोर फिलोसॉफिकल। मेरा मानना है कि धर्मों का युग अभी ख़त्म हो रहा है, सभी धर्मों में संकट है, भयंकर संकट है, और चुपचाप लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हुआ था क्राइसिस राम मंदिर के दौरान भी, कि बहुत सारे समाजवादी मार्क्सवादी मित्र, हमारे कुछ मार्क्सवादी मित्र जो मुझे बोलते थे कि भाई एक ही साइंटिफिक आइडियोलॉजी है वो मार्क्सवाद और कुछ नहीं है, वो बाद में विपक्ष करने चले गए। ओके, तो हाँ हाँ, सो द पॉइंट इज कि ये जो धर्मों का संकट है, सब लोग उत्तर ढूंढ रहे हैं अध्यात्म में। मैं तो अध्यात्म में ढूंढ रहा हूँ, जिसको जिस प्रकार से लगे। हाँ हाँ, Going to Vipassana is sort of self-disciplining, helping oneself. It has not anything to do. No, I'll tell you. देखो ये अपना और एक सेक्ट नहीं, वो that's fine. हम लोग का और एक मामला है ना, हम लोग जिस प्रकार से बड़े हुए थे कि सभी धर्म एक ही बात करते हैं और हम सभी धर्म समान है, सबकी धर्म वैल्यूज़। अरे भाई धर्म अलग है क्योंकि सबके धर्म के वैल्यूज़ अलग है, इसलिए सब धर्म अलग है। ओके, कुछ चीज़ें कॉमन है मगर बहुत सारी चीज़ें अनकॉमन है, बट लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर ऑल्सो देयर। ओके, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कम टू, मुझे एक ही चीज़ कॉमन मिली कि आप उसको आत्मा बोलो, सोल बोलो, रूह बोलो, वो अगर आप ईश्वर खुदा में मानते हो, इफ़ यू बिलीव इन गॉड, तो वो जो सोल ऑफ गॉड है वहाँ से और हम में है, आप में है, सब में है, वो कॉमन है। अगर आप अपने आत्मा को ढूंढ लोगे तो आप परमात्मा को ढूंढोगे। दिस इज वॉट इज कॉमन टू ऑल, दिस इज देयर इन ऑल spiritual streams of all religions. This is what is common to me. The rest is all secular fake fake. Seriously. नहीं, गौतम बुद्ध तो परमात्मा में मानते नहीं थे, क्या मानते थे वो पता नहीं, वो बराबर नहीं, कुछ लोग तो आत्मा को भी नहीं मानते उनमें। तो एनीवेज, हॅलो सर, माझं नाव विशाल पाटील. सर, इस्रायलमध्ये जी ज्यूइश कंट्री अशी दोन फिलॉसॉफी आहेत की इस्रायल एक फिलॉसॉफी इस्रायल आणि ज्यूच्या साईडने असते आणि एक फिलॉसॉफी ही पॅलेस्टाईन आणि अरबांच्या साईडने असतं. असं म्हणतात की अरबांनी ज्यावेळेस इस्रायलवरती आक्रमण केलं, म्हणजे ज्यावेळेस युद्ध वगैरे लढले जात होते पैगंबरांच्या वेळेस, तर त्यावेळेस त्यांनी ज्यूंना तिथून हटवलं आणि तो प्रदेश त्यांनी काबीज केला. मग आज जर तिथं ज्यूज त्यांना हटवून परत आपला प्रदेश मिळत असतील, मग त्यात काय चुकीचं आहे? एक इम्पॉर्टेंट किताब है, आप सीरीज लेकर पढ़ना चाहते हो वो किताब को पढ़ लो। वो एक जूइश प्रोफेसर है, उसने अभी जूडिज्म छोड़ दिया है, उनका नाम है श्लोमो सैंड। उन्होंने 3 किताबें लिखी है और उसकी फर्स्ट किताब थी द इन्वेंशन ऑफ द जूइश आइडेंटिटी। ओके, पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊँ कि वो जो इतिहास है आपने बहुत शॉर्टकट में बता दिया, मगर वो भी पूरा गलत इतिहास बता दिया। ओके, पैलेस्टाइन में आज जो जूस है ना, ओके, वो 90% यूरोपियन है, 90% यूरोपियन ओरिजिन के। नहीं तो यहाँ के कोई लोग ब्लू आइड ब्लॉन्डेड वाला कोई होता नहीं ना, जीसस ब्लू आइड ब्लॉन्डेड थे, वो भी ब्राउन थे हमारे जैसे, उनको पूरा यूरोपियन बना दिया है। पॉइंट क्या था कि अगर आपने बैनर पिक्चर भी देखा होगा, वापस आया है, आप देख लीजिए उस पिक्चर को, तो जो जूस वहाँ रहते थे रोमन एम्पायर के दौरान, मैं जीसस ईसा नबी के टाइम की बात करूँ, जीसस क्राइस्ट के टाइम की बात करूँ, 2000 साल पहले की बात करो, वो टाइम पे जूइश आबादी थी। एक तबका जूस का था जो रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था, जिसको जेलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो 70 AD में एक बहुत बड़ी जंग हुई और वो जंग चलती रही 130 AD तक, 60-70 साल चलती रही, और जूस का एक तबका निकल गया यूरोप की तरफ। उनको निकालने वाले रोमन्स, क्योंकि वो टाइम पे कोई मुसलमान नाम की चीज़ थी नहीं। ओके, मैं 600 साल पैगंबर के पहले की बात कर रहा हूँ।
तो उस इलाके में, इसराइल के इलाके में, और इसराइल में जो जूस का राज रहा वो 80-100 साल का रहा, उससे ज़्यादा नहीं रहा। तो जो लोग रह गए थे, जो जूस थे, उसमें से ज़्यादा करके क्रिश्चियन बन गए, क्योंकि जो पहले क्रिश्चियन थे वो जूस ही थे। क्राइस्ट ऑल्सो इन दैट, एक रिफॉर्म मूवमेंट थी क्रिश्चियनिटी में। और वो क्या रिफॉर्म मूवमेंट थी क्रिश्चियनिटी की, कि जूडाइज्म में, एक्चुअली जूडाइज्म जो धर्म है ना, वो हाईली सुप्रीमेसिस्ट है। एक्चुअली वो इंटरनेशनल ब्राह्मणवाद है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जो मतलब जितनी हिंसा ओल्ड टेस्टमेंट में है, मैं तो चौंक गया था। मतलब गॉड बोलते हैं कि भाई वो आप वो देश को ले लो, ठीक है, और वो देश के जंग के दौरान उनको मारो, उनके कैटल को मारो, उनको बीवी को रेप करो, जो करना है करो। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जो गॉड का कंसेप्ट एक ट्राइबल कंसेप्ट है। जूज का ये गॉड है, गॉड ऑफ द जूइश पीपल। ओके, तो जीसस आके गॉड के कंसेप्ट को डेमोक्रेटाइज करते, यूनिवर्सल बना देते कि गॉड इज द गॉड ऑफ ऑल पीपल। नहीं तो जो जूइश टेम्पल में थे वो जूस पहले खड़े होते थे, उसके बाद उनकी औरतें, और उसके बाद जो नॉन जूस थे। इसलिए जीसस आके ये पूरा उनका जो मत्तेदारी थी धर्म के ऊपर, वो जीसस तोड़ डालते हैं। इसलिए उनको आज भी खुन्नस है। मतलब जब मैं जेरूसलम में था, मैंने माँ बहन की गाली सुनी है जीसस के खिलाफ, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे। दैट कैन नो लैंग्वेज और कोई नहीं यूज़ करता जीसस के खिलाफ, मगर आज भी उस किस्म की लैंग्वेज वो लोग उसके खिलाफ यूज़ करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि पैलेस्टाइन में जो 25% आबादी थी क्रिश्चियंस की, वो 2% पे आ गई है। और उनका टारगेट क्या है कि बेथलेहम को एक म्यूजियम पीस बना दो और बाकी के सब क्रिश्चियंस को निकाल दो। इराक में, सीरिया में अभी अभी मेरे क्रिश्चियन दोस्त बोल रहे हैं कि एक टारगेट ज़रूर है कि क्रिश्चियंस को ये पूरे इलाके से निकाल दो। इराक का क्रिश्चियन तो साफ हो गया प्रैक्टिकली। ओके, 3 लाख की आबादी थी, शायद 50,000 बचे होंगे, तो पता नहीं, वो वापस आ भी नहीं सकते। सीरिया से जो क्रिश्चियंस गए वो वापस लौट रहे। ओके, और सीरिया के 5 जो पोप थे इनके, 5 सीरिया से गए। वो इंपॉर्टेंस है सीरिया की ये पूरे बाइबल के डेवलपमेंट की। ओके, एनीवे द पॉइंट बीइंग दैट ये जो बात थी कि जूस को सबको निकाला गया था, दे वेंट इनटू एग्जाइल, इट इज़ अ लाई। जो जूइश पीपल थे, जो सेमेटिक पीपल थे, जैसे भारत के लोग हैं, कोई ये धर्म में बन गया, वो धर्म में बन गया, हम लोग एक ही दिखते हैं, मगर कोई ये धर्म है, कोई वो धर्म है। 100 साल के बाद ये राजा ने एक्सेप्ट किया तो वो बन गया, जैसे कश्मीर में हुआ था, या जैसे जैसे होता है। ओके, सो द पॉइंट इज दैट कोई बार भी उनका टोटल एथनिक क्लेंजिंग कभी भी नहीं हुआ है। और ये जो मैं ऑथर का नाम बोल रहा हूँ, उस पर आर्टिकल्स भी है, श्लोमो सैंड, SHLOMO सैंड करके, और उसकी किताबें बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। पहले तो हिब्रू और फ्रेंच में आई थी, और अभी अंग्रेजी में मिलती है, मगर वो जा पढ़ लो। ओके, और आज भी हमारा बोलना है पैलेस्टाइन को लेकर कि इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। आज पैलेस्टाइंस आर आस्किंग ओनली फॉर 22% ऑफ ओरिजिनल पैलेस्टाइन, खाली वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम, खाली 22%। ओके, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस को किसी देश के बंटवारे का अधिकार बनता नहीं, मगर वो टाइम पे ब्रिटेन और अमेरिका पूरा यूनाइटेड नेशन को चला रहे थे। भारत ने तभी उसका विरोध किया था। मगर जूस की आबादी 30% थी, उनको यूनाइटेड नेशंस ने 56% लैंड दे दी थी। तो कैसे आप स्वीकार करते? उसके बाद वॉर हुई और आधी से ज़्यादा पैलेस्टाइन आबादी को उन्होंने हकाल दिया वो टाइम पे 1948 में, 47-48 में। ओके, और अभी जब यासर अराफात वाली मूवमेंट चली और वो एक सेकुलर मूवमेंट है, 87 में, 88 में फाइनली अराफात हैड अग्रीड दैट वी विल टेक बैक ओनली 22% ऑफ ओरिजिनल पैलेस्टाइन, खाली 22%। वो भी ये लोग देने के लिए तैयार हैं। ओके, कभी पैलेस्टाइन को लेकर एक डिटेल में चर्चा अलग से करेंगे, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। जिस प्रकार से ये वो तो कांग्रेस ने भी कर लिया था, मगर मोदी का ओपन रोमांस हो रहा था, मनमोहन का पीछे से हो रहा था। ओके जी, प्रश्न नाही विचारत, फक्त थोडं जोडतो की पॅलेस्टाईनची चर्चा ज्यावेळी सुरू होती त्या काळामध्ये तर महात्मा गांधींनी त्याच्यावरती काही स्टँड घेतलेला आणि ते आपल्या इथल्या ग्रंथामध्ये पण तुम्हाला सापडेल। त्यांचं म्हणणं तेच होतं की इतरांची भूमी कब्जा करून आणि त्याच्यावरती नवीन देश बसवणं हे तिथल्या तिथे राहणाऱ्या लोकांच्यावरती फार मोठा अन्याय आहे आणि या पद्धतीने करू नये हा स्टँड महात्मा गांधींनी घेतला होता। याची मी फक्त इथे एक नमूद करतो, कारण की तो सगळा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय होता आणि इथे आपण गांधी स्मारक निधीमध्ये बसलेलो आहोत, तर गांधींची भूमिका काय होती ही अनेकांना माहिती नाही, म्हणून मी फक्त एवढं इथे जोडतोय। कोई पीछे लड़का है उसको। मेरा नाम शिवप्रसाद ढगे। सर, जो अभी सीरिया के ग्रैंड मुफ्ती जो इंडिया टूर पे आए थे, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि जो वेस्ट से जो हेल्प आती है सीरिया को,
तो कंडीशनल आती है, और जो ईस्ट से आती है वो अनकंडीशनल आती है। मतलब वो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर हेल्प कर सकते हैं। तो इंडिया का क्या रोल हो सकता है सीरिया में? क्योंकि उन लोग ने जो कश्मीर का इशू उसमें भी इंडिया के अगेंस्ट स्टांस नहीं लिया। जो मुस्लिम काउंसिल कंट्रीज का जो काउंसिल है वहाँ पे भी कभी इंडिया के अगेंस्ट स्टांस नहीं हुआ। अगर इंडिया इजराइल के साथ रिलेशंस बनाता है तो उसमें क्या इफेक्ट होगा? मैं मुफ्ती हासन को मिला हूँ, बहुत कमाल के आदमी है वो। उसके बेटे को आके आईसिस ने उसके घर में आके मारा था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मुफ्ती हासन सरकार को सपोर्ट करना बंद करे। मगर मुफ्ती और हम लोग जब गए थे तो लगा वो मिलना करना था, तो बोले आपको मुफ्ती हासन को मिलना है। तो हम लोग बोले यार 15 मिनट मिलेंगे। हम लोग 1.5 घंटे के लिए बैठे थे। इज़ अ मैन ऑफ विजडम, बहुत पढ़े लिखे आदमी और वो बहुत दूर दृष्टिकोण के आदमी हैं। बात ऐसी है कि वो बात सही है कि सीरिया ने तय कर दिया कि अभी ये जो रीबिल्डिंग होगा उनका कंट्री का रिकन्स्ट्रक्शन, वो अपने दोस्तों को देंगे। मतलब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इराक को भी आप बर्बाद करोगे फिर पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम बेक्टेल और वो सब उन्हीं को कंपनीज को जाएगा, वो सब नहीं करेंगे। मगर एक प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है, मोदी के विज़िट के बाद जब अभी जो इसराइल गया तो बशर अल असद की जो वो एक लेडी है, वो वाइस प्रेसिडेंट लगभग अभी बनी जाएगी। ओके, उन्होंने क्या बोला था कि बेसिकली वी विल हैव टू रिकन्सिडर गिविंग इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स। इसराइल के साथ हम लोग जो इतने नज़दीक जा रहे हैं ना, उसका ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला। ओके, मैंने वही कहा कि इसराइल जो गाज़ा को नहीं ले सकता है, ओके, वो हमको क्या मिलिट्री मदद करने वाला है? आप हिजबुल्लाह गरिल्ला आर्मी को नहीं हरा सकते, तो हम लोग क्या इसराइल के साथ? इसराइल की आबादी 50-60 लाख, हम यहाँ रोज़ 125 करोड़ की बात करता है मोदी। तो कौन किसको डिफेंड करेगा, कौन किससे क्या मदद ले रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बराबर है आपकी बात, और उसमें भी ड्रग्स, वेपन्स, ये वो हेडली बेडली सब। अरे माइक काय के लिए दिया था? स्टार्ट वर्किंग, इट्स वर्किंग। माझं नाव धनाजी। माझा प्रश्न असा आहे की गेल्या वर्षी आपले ॲडवायझर अजित डोवालने असे एक स्टेटमेंट केले की इफ यू डू वन मुंबई यू विल लूज बलुचिस्तान। तर ह्या स्टेटमेंट मागचं रहस्य काय की आपण आपली जशी आपण तमिळ LTT आपण पोचली तसं आपली काही फोर्स आहे का पाकिस्तानमध्ये की जिच्या जीवावर आपण ही स्टेटमेंट करतोय? अपने भी लोग हैं अंदर, रॉ के लोग। एक कुलभूषण भी ऐसे घूमने नहीं गया था, ठीक है? तो मगर इतना देखो कि हम लोग ने इतना नहीं अपने भी लोग बम फोड़ते उधर, वो सवाल नहीं है। वो लोग भी करते, हम लोग उससे ज़्यादा कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, तर मग मी माझा प्रश्न असा होता की त्यांनी छोट्या छोट्या मुंबई बरेच जम्मू काश्मीरमध्ये केल्यात, तर त्यांनी छोट्या छोट्या मुंबई, एक मोठी मुंबई नाही केली तर छोट्या छोट्या डिवाइड करून मुंबई रोज ते ह्याच्यात करतात जम्मू काश्मीरमध्ये। तर मग आपण त्याच्याविषयी काय स्टँड नाही घेतला तिथं? कौन, हम लोग या मोदी? किसकी बात कर रहे हो? नहीं हम लोग मीन्स गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ने बोला ना। आप देखो मोदी ने लास्ट ईयर बलूचिस्तान को लेकर कितना बोल दिया। ये साल कुछ ना हम लोग ने, यूनाइटेड नेशन में सुषमा स्वराज ने बलूचिस्तान का जिक्र किया, और वो जो ब्रह्मदक बुख्ती है जो बलूचिस्तान का लीडर है आज तक, उसको हम लोग ने असाइलम नहीं दिया। तो बलूचिस्तान पर हम लोग क्यों चुप बैठ गए, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ओके, मगर उसके साथ ये क्लियर है, वो लोग पाकिस्तान में लफड़ा, हमारे कश्मीर में लफड़ा कर रहे हैं, हम लोग जाके वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मगर मुझे तो शर्म आती है जिस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे खड़े होकर ये सब बचपना कर रहे हैं, बहुत बहुत भयंकर है। और केसी सिंह ने वही बात बोली, आप वो देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि तुम एक आतंकवादी देश हो, तुम पे आक्रमण हो सकता है वगैरह वगैरह। प्रेसिडेंट रूहानी ने 2 स्टेटमेंट में अमेरिका को डील करके छोड़ दिया। ओके, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड नेशंस में जब आप आधे घंटे के भाषण में 10-15 मिनट आप दूसरे देश को गाली देने के लिए करोगे, तो फिर दूसरे देश में भारत और पाकिस्तान दोनों की वैल्यू डाउन हो जाती है। ओके, तो हम लोग का जो स्टैचर है दुनिया में, और हम लोग जिस प्रकार से वापस गिर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है सीरियसली। जो आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया पॉलिटिकल, तो ये कोई गुंजाइश है क्या कि अपना भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो जाए? एक कर, मैं आपको इस पर एक जोक बता दूँ, एक जोक बता दो। इस पर हुआ था क्या, 2014 में हम लोग एक पीस कारवा निकाले थे
2011 की बात थी, बॉम्बे टू लाहौर, ठीक है, वाघा बॉर्डर क्रॉस वगैरह करके तब बाढ़ आ गए थे और हम लोग 14 अगस्त को पहुँचे थे, 14-15 अगस्त की बात थी। TV9 का बंदा यहाँ से गया था, 2-3 साल से TV9 वाले जा रहे थे और बॉम्बे के स्टूडियो लाहौर का स्टूडियो वाली बात थी। इस बार एक नया लड़का TV9 का आया था, ओके, मैं जानता था उसको। तो वो शुरुआत कहाँ से करता मालूम है? हमारी दोनों की 60-65 साल की आज़ादी का टाइम हो रहा है, हम लोग को देखो तुम लोग को देखो, ओके, हम लोग इतना बड़ा देश बन गए, हमारी इकोनॉमी ये, हम लोग डेमोक्रेटिक और तुम लोग का हाल देखो, ये बम फूट रहे, पूरी पब्लिक भयंकर लफड़ा चालू हो गया उसमें, ओके। तो TV9 एंकर ने मुझे बुलाकर बोला यार तू उसको संभाल, ठीक है, क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन था उन्होंने वही बात बोला कि आज तक आपने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, आज भी आप आक्रमण करके हमारे देश को लेना चाहते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने उठकर बोला देखो हमारे पास कितने 15-20 करोड़ मुसलमान हैं, हम लोग उसको नहीं संभाल पा रहे, तुम लोग लेकर क्या करोगे? तो वो और भड़क गए थे। जब मैं बोला यार ये, मैंने बोला भाई ये जोक है। बट द यंगर जनरेशन जो लाहौर दिल्ली फ्लाइंग, दे हैड फ्रेंड्स ऑन बोथ साइड्स, इट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ। जो पार्टीशन वाला जनरेशन है ना, जो वो लेवल पे अभी तक सोच रहा है, ओके। बट दैट इज़ वाई कार्यकर्ताओं को बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बुद्धिजीवी कार्यकर्ता सेक्शंस के, हम लोग जब अपना महाराष्ट्र स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का जब हम लोग काम करें, उसके साथ एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब इश्यूज़ को लेकर हमारी एक, क्योंकि आम आदमी सवाल पूछेगा आईसिस का क्या, इसका क्या, उसका क्या, और जब हम लोग के पास कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उससे हम लोग अपना मूवमेंट को नुकसान करेंगे। लेकिन इसका फायदा होगा क्या? नो, वी नीड अ साउथ एशियन रीजन। मैंने तभी बोला था कि एक साउथ एशिया तो बने कि नहीं, आप डायरेक्ट मतलब दुनिया की 22% आबादी हमारे मुल्कों में है दुनिया की, और 1.5% की हमारी इंटरनेशनल जो वेल्थ है ये रीजन में नहीं है। टू फ्लाई टू पाकिस्तान यू नीड टू गो टू, यू नो, इट्स वियर्ड, दिस एंटायर रीजन इज अ प्रॉब्लम। मतलब दुनिया का सबसे अनकनेक्टेड डिवाइडेड रीजन एक्चुअली कोई है तो आज साउथ एशिया है। तो लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, बट आप देखो ये टाइम की सार्क मीटिंग भी नहीं होगी क्योंकि सार्क के डिवीजन बहुत भयंकर है, ये इंडिया पाकिस्तान के मामले में, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी कॉन्ट्रडिक्शन बहुत डीप है। तो देयर इज नाउ अ क्लियर कट अलायंस, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वी आर ऑल वन अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट द आंसर्स आर नाउ कमिंग फ्रॉम द SCO, फ्रॉम द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक लार्जर रीजनल ब्लॉक में वे रशिया और चाइना हमारे को संभाल पाएंगे। कोई सवाल यहाँ से? तो फिर से एक बार गांधी जी का आपने जो कहा साउथ एशिया के बारे में, वो भी ये कहते थे कि साउथ एशिया के बीच में निरंतर संवाद रहे और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी बने। तो आपने जैसे कहा, संदीप बर्वे, मेरा एक सवाल ऐसा है कि क्राइस्ट के बारे में आपने कहा कि वो फिर से आएंगे। अरे मैं नहीं बोल रहा, नहीं, ऐसा बोला जाता है। उनको आना है कि भी नहीं पता नहीं, प्लान कैंसिल, हाल तो देखो दुनिया। तो हम लोग को जो करना है करो। हिंदुओं में भी बोला जाता है कि विष्णु के 10वें अवतार आएंगे कली, और जिसको ऐसा टेररिज्म करना है वो बोलता है मैं ही कली हूँ। तो ये जो तो मोदी नहीं है क्या? मोदी खत्म, योगी होगा खत्म। तो ये जो आप तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका एक बेसिक प्रॉब्लम ये होता है, हम यूक्रेन में भी और सब डिस्कशन में ये होता है कि हम सबके बीच में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में एक इस्लामोफोबिया है, जिसका जिक्र डॉक्टर राम पुनियानी ने इस हॉल में किया था, कि इस्लाम के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में बहुत गलत फहमियाँ होती है। और ये जो आईसिस और सब रोज देखते हैं टीवी पर, तो वो बढ़ता जाता है। तो इसका मुकाबला कैसा करेंगे? हम यूक्रेन में ट्रेनिंग लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम दोस्त बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों के घर पे जाओ, ईद को जाओ, और क्या तरीके हो सकते हैं? ईद में जाने के फायदे, जाते रहो क्या? नहीं, इसमें मैं वापस आपको बोलना चाहूँगा, ये इस्लामोफोबिया का जो मामला है ना, इस्लामोफोबिया है ज़रूर, मगर मुसलमानों को ज़्यादा ईमानदारी से बात भी करनी पड़ेगी, वो भी सही है, ओके। ये बोलकर नहीं चलेगा कि आईसिस में यहूदी भरा है और अमेरिका वाले हैं और हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आईसिस जीत रही थी तो बहुत सारे मुसलमान दोस्त थे मेरे जो आईसिस का साइड ले रहे थे। जब भांडा फूटने लगा तो बोला ये तो हमारा है ही नहीं, ओके। और इस्लाम के अंदर जो गड़बड़ियाँ है उसको लेकर ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला था कि एक पिछले रमज़ान में एक इंटरफेथ डायलॉग हो रहा था, 10 धर्म के 10 धर्मगुरु, मेरा धर्म इतना अच्छा, तेरा धर्म इतना अच्छा, वही चल रहा था। उसमें जो एक जैन मुनि था उसने बहुत अच्छी बात बोली, मैं 10 साल से कर रहा हूँ इंटरफेथ डायलॉग, और हर अगले साल सिचुएशन और भी ख़राब होती जा रहा है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से
मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरी धर्म की 10 बुराई करूँ और आपकी धर्म की भी 10 बुराई करूँ और 20 अच्छाई की भी बात हम लोग करें। मगर बुराई की तो कभी बात होगी कि बुरा है ही नहीं, ये बुराई कहाँ से आ रही है? अगर इस्लामोफोबिया या हिंदुत्व या जो भी हम लोग जो बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स है ना। मैं आपको और एक छोटी बात बताऊँ तो मेरा एक दोस्त है संजय बारोट, हम लोग 3 साल की उम्र में साथ में है, नर्सरी स्कूल से साथ में थे। तो एक बार बोला यार मेरा एक जैन दोस्त है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं इस्लाम के बारे में। बोला मैं स्कॉलर वॉलर हूँ नहीं, मगर जितना जानता है कर लेंगे। पिक्चर देखने गए, बोला यार तो कोई बात नहीं की, बोला नहीं उसको पीना है। बोला तुम लोग पियो, मैं तो पीता नहीं हूँ, गांधी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, गांधी हूँ इसलिए। तो फिर बोला ठीक है बैठे, फिर वहाँ बैठ के बातचीत शुरू की और बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने संजय को बोला कैसा रहा? बोला बहुत अच्छा रहा, मगर वो बोला एक तो और की बात बता दूँ, वो दारू पी के ड्रंक हो गया था इसलिए वो तुमसे बात कर पाएगा, नहीं तो वो मुसलमान से इतना डरता है। आप समझ बात को? आप पे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है दो दोस्तों में कि आप खुलकर एक दूसरे के धर्म के बारे में बात करो। आप मुसलमान से तो करेंगे नहीं, आप बिरयानी खा लोगे मगर आप उससे बात नहीं करोगे उसके ये सब चीज़ों के बारे में। ओके, तो इसलिए मैं वही कर रहा था कि मैं जब एनसीबी की मीटिंग में गया था ना, दत्ता ने बुलाया था मुझे, दत्ता बालसराफ ने, उसके बाद शायद नहीं भी बुलाएगा, पार्टी टूट जाएगी। तो हलाला, ट्रिपल तलाक की वो सब की बातें की, मगर जब मैंने क्लियर कर बोला कि मुझे कुछ कुरान के वर्सेस को लेकर प्रॉब्लम है, तब 3-4 लड़के खड़े हो गए कि ये सब बातें नहीं हो पाएगी। कुरान परफेक्ट है तो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? ओके, और ये प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इतना 27-28 साल प्रोग्रेस मूवमेंट में को होने के बाद भी मुझे ये बातें बहुत बाद में समझ में, आम लोग को बहुत टाइम लगने वाला। मगर हुआ क्या है कि जहाँ क्राइसिस ज़्यादा है मुसलमानों में, जहाँ वॉर ज़्यादा चल रही है, वहाँ ज़्यादा लोग सोच रहे हैं। ओके, यहाँ का कॉन्ट्रडिक्शन अलग है, इसलिए कुछ बट फिर भी चीज़ें खुलने लगी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, उस आदमी का नाम है हसन रादवान, एक इस्लामिक स्कॉलर है, इजिप्ट का है, लंदन में रहता है और वहाँ पढ़ा रहा है वो। तो उसने क्या कही ये बात, और वो राम पुनियानी के लिए इम्पोर्टेंट है और अब्दुल कादर मुकादम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जाकिर नाइक के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो लोग तो वही सब बोलते हैं। गड़बड़ क्या है कि अगर एक वर्स प्रॉब्लमेटिक है, जैसे एक वर्स है कुरान में जहाँ वाइफ बीटिंग अलाउड है, आप उसको समझाओ, नहीं समझी तो आप उसके साथ मत सो, वो नहीं मानी उसके बाद तो आप उसको मारो, ठीक है? तो फिर ये लोग उसका लीपा पोती करेंगे, मगर इसका ये मतलब नहीं, उसका वो मतलब है, ठीक है? जिहाद की बात करोगे तो भाई जिहाद डिफेंसिव होता है, मगर जो लिख रहे वो तो ऑफेंसिव जिहाद की बात करे, इस्लाम का झंडा फैलाना है। आईसिस के लिए डिफेंसिव जिहाद क्या होता है, ठीक है? जैसे पेशावर के स्कूल में जो लड़के मारे गए थे बच्चे, वो लोग ने क्या लेटर लिखा था मालूम है? जब बोला गया कि आपने जिन बच्चों को अलग किया था, वो लोग ने बच्चों को अलग किया, स्कूल के बच्चों को, जो बच्चे प्यूबर्टी वाले थे, जिनके बाल आ चुके थे, उन्होंने चेक किया था, और जो बच्चे छोटे थे और जो बच्चे बड़े थे, ठीक है, और जो लड़के बड़े हो गए थे उनको मारा। तो मौलाना लोग के फतवे, ये तो एंटी इस्लामिक है, इस्लाम में ये सब अलाउड नहीं है। तो बोले ये प्रॉफिट के वॉर के दौरान हुआ था। बैटल ऑफ कुनेजा अगर आप पढ़ोगे तो मैं तो हैरान हो गया था कि भाई ये कौन इस पर बात करेगा। असगल इंजीनियर ने भी बात नहीं की इस पर, ओके। मगर एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, उसका नाम है न्यू एज इस्लाम। न्यू एज इस्लाम, उसके एडिटर है सुल्तान शाहीन। उनको कभी बुला लो, आपने बुलाया क्या उनको बुला लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि असगल इंजीनियर ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो उनका है कि उन्होंने इस्लाम के जो प्रोग्रेसिव कंपैशनेट स्ट्रीम्स है उसको उन्होंने उजागर किया, और वो सही किया उन्होंने, ओके। मगर इस्लाम के जो डेंजरस ट्रेंड्स है वो आज उस पर सुल्तान शाहीन लिख रहा है, और बहुत ईमानदारी से, बहुत स्कॉलरली तरीके से लिख रहा है। क्योंकि 2011-12 से जो पूरी क्राइसिस इस्लामिक वर्ल्ड में आई है, ऑफ आइसिस, ऑफ अल कायदा इन अ न्यू फॉर्म, उसके बाद पूरा स्टेट का बैकिंग, वहाबीज़म, सल्फीज़म, ओके, जहाँ उनको पॉलिटिकल इस्लाम का पावर पूरा स्टेट पावर में बदलना है, ओके। ये एक नया प्रॉब्लम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आया है, और मुस्लिम ज़्यादा मर भी रहा है उससे, ओके। 95 to 90% जो मर भी रहे वो मुसलमान ही मर रहा है, ऑलराइट। तो इसलिए वो जो क्राइसिस में से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें हसन रदवान क्या लिखता है कि हम जब तक बोलते रहेंगे और मानते रहेंगे कि कुरान इज़ द परफेक्ट वर्ड ऑफ गॉड, आप उसका रिफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि जो परफेक्ट है उसका रिफॉर्म कैसे होना है? मगर कुरान में लिखा है कि आज मैंने आपका धर्म को परफेक्ट कर दिया है, तो जो परफेक्ट है आप उसका रिफॉर्म, क्या मतलब है उसका रिफॉर्म का? तो ये लीपा पोती है। जैसे एक वर्स है, मैं 2000 मतलब वर्ल्ड वॉर जो पहला नरसंहार हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था 20th सेंचुरी का, वो आर्मीनियन क्रिश्चियंस का हुआ था टर्की में। 10 लाख आर्मीनियन क्रिश्चियंस मारे गए थे,
उसमें काफ़ी को सूली पे चढ़ा दिया था। तो मैं बोला यार ये सूली पे क्यों चढ़ाया? बोला एक कुरान में अलाउड है। ओके, वो एक वर्स है, वर्स 5 चैप्टर 5 वर्स 33 वाला 32 करके, उसमें है कि अगर आप उन्होंने अल्लाह के खिलाफ बगावत की, इस्लाम के खिलाफ बगावत की, तो आप उसके खिलाफ लड़ो, आप उनके हाथ पैर काटो या आप उसको क्रूसीफाई करो। अरे भाई आप किसको मारोगे जंग के दौरान मुझे समझ में बात आती है, मगर आप टॉर्चर करोगे, हाथ पैर काटोगे, क्रूसीफाई करोगे 3-3 दिन, क्या मतलब होता है? ओके, इसलिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इस्लाम की कुछ प्रीचिंग्स में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कायरो में सम्मेलन हुआ था और कायरो डिक्लेरेशन ऑफ इस्लामिक ह्यूमन राइट्स, और बहुत गड़बड़ है उस डॉक्यूमेंट में। मगर इंटरनल ये सोसाइटीज़ में संघर्ष हो रहा है। ओके, वो संघर्ष को समझना, रिकग्नाइज करना, अपने मुस्लिम दोस्तों से बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप मनुस्मृति के बारे में बात करोगे, गीता के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट और कुरान के बारे में क्यों नहीं बात करोगे भाई? जब इतनी परफेक्ट किताब है तो क्यों डर रहे हो भाई उससे बात करने के लिए? सो दीज आर द थिंग्स दैट विल हैव टू ऑनेस्टली डू। मगर ये होगा तब जब आपकी एक ही विल ट्रस्ट यू, आप दोस्त हो, ठीक है, आप समाज में उतर के सीधा ये वो चालू कर दोगे तो आपके लिए समाज के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मतलब मेरा जैसा व्यक्ति भी बहुत डीप चला गया था कम्युनिटी के अंदर, मतलब मैं सभी के साथ बैठ रहा था, मेरे बहुत सारे सेकुलर दोस्त मेरे से परेशान थे, बहुत सारे सेकुलर मुस्लिम के तुम क्या कर रहे हो यार? ओके, मगर मैं गया, समझा बहुत कुछ, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो बहुत सारे लोग समर्थन में आए, बहुत सारे लोग, बहुत मुस्लिम साथी मेरे से अलग भी हो गए, मगर अभी नए साथी भी ये सामने आ रहे हैं जो ये चीज़ों को समझने के लिए तैयार है। और जो पुराने दोस्त थे वो वापस कॉन्टैक्ट करने लगे कि भाई तुम जो बोल रहे थे, क्योंकि सदमा होता है यार ये सब। ये हसन रजवान का जो आर्टिकल है, मैं 3 दिन तक मैं फेसबुक पे डाल नहीं पाया, मैं इतना हिल गया था। मैं बोला मैं डाल दिया तो यार मतलब यू कैन गेट किल्ड फॉर डूइंग दिस थिंग्स। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो हो ही रहा है कि जो ब्लॉगर्स ये सब लेकर उनको तो घर घर में, गौरी लंकेश का भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है सिचुएशन। सो अलॉन्ग विथ फ्रेंडशिप, एक ऑनेस्ट डायलॉग ऑन ऑल दीज इशूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, किसको है जिसको नहीं है वो एक व्यक्तिगत निर्णय है सबका, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलिए सर। ना, उनका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला। हमारा प्रॉब्लम ऐसे है, हम लोग तय करते हैं कि इसको धर्म की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ होता है। एग्जैक्टली सर, हर धर्म का अपना एक धर्म ग्रंथ है जी, जैसा गीता, कुरान, बाइबल। तो हमेशा अगर रिफॉर्म्स की बात होती है या कुछ चेंजेस की बात होती है, उसमें क्या मतलब त्रुटियां है वो सब देखा जाता है, वो कुरान में ही देखी जाती है। कभी मतलब भगवत गीता को रिफॉर्म किया जाए या भगवत गीता में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए, या बाइबल में आज तक कभी डिस्कशन में कभी आया नहीं कि बाइबल में कुछ चेंजेस आने चाहिए, बाइबल में ये लिखा हुआ है वो गलत है, उसकी जगह पे ये आना चाहिए। ये सिर्फ कुरान में ही होता है, और उसके ऊपर इतना मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कंट्रोवर्सी क्यों होता है? ना देखो, दूसरे धर्मों में काफ़ी कुछ रिफॉर्म हो गया है, वो लड़ रहे हैं। मतलब गीता पे तो बाबा साहब ने बोला है, गांधी ने बोला है, सब कुछ हुआ है, मतलब वो कोई बात नहीं है। और कांचेला जैसे लोगों ने तो किताब लिखी है, वाई नॉट हिंदू और वगैरह वगैरह, वो तो सब हो ही रहा है, डायरेक्ट टिका हो रही है। ओके, बाइबल को लेकर भी आप देखोगे कि जो क्राइसिस है यूरोप में, चर्चेस खाली पड़ रहे, चर्चेस बेच कर मस्जिदें बन रही है, वो भी एक क्राइसिस है। ओके, क्योंकि अगर धर्म ईमानदारी से उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आज जो धर्मों के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ हो रहा है, कल जाके इस्लाम के साथ होने वाला है। मैं तो हैरान हूँ। और एक मेरा कज़न ब्रदर है, मतलब एकदम वो बोले फिरोज तुम इस्लाम ठीक से जानते नहीं, तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, ये वर्स का ये मतलब वो वर्स। हम तो हर वीक बैठते एक एक वर्स को स्टडी करते हैं। मैं पोस्ट करते रहा, मैं बोला मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, तुम जवाब दो ना, तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो, तुम लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हो यार। ओके, 3 महीने पहले मेरे उसको फ़ोन आया, फिरोज भाई तुम कुरान में मानते हो, अल्लाह में मैं मानता हूँ, मगर मेरे कुछ सवाल है। बोला अभी मैं नहीं मानता। मैं बोला यार इसको क्या हो गया, थियरी तो पूरा। दिस इज द पॉइंट। अगर ईमानदारी से अंदर से आंसर नहीं आए और आपने डरा के रखा कि भाई ये बात ही मत करो, तो आपके पास दिमाग है, दिल है, आप निकल जाओगे। दिस इज व्हाट विल हैपन। हाँ, तो फिर आप फेसबुक पे देखो, आप जरा देखो, एक्स मुस्लिम्स ऑफ वगैरह वगैरह, एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन, एक्स मुस्लिम्स ऑफ जर्मनी, एक्स मुस्लिम्स ऑफ टर्की, ये सब हो रहा है। जर्मनी में एक मस्जिद बनी है, ठीक है, एक औरत है, टर्किश स्कॉलर है, उसने जर्मनी में मस्जिद बनाई है, मर्द औरत, गेज, लेस्बियन सब साथ में नमाज पढ़ो। बुरखा वाली औरत किसी को अलाउड नहीं अंदर। पहले तुम लोग के पास अपनी मस्जिद है, तुम लोग करो। यहाँ खाली लिबरल प्रोग्रेसिव्स के लिए मस्जिद बनी है हमारी।
तो ये रिवोल्ट हो रहा है सब जगह पे। ओके, हॅलो सर, बोलू का? अच्छा, दोघं एकाच वेळी झालं. माझं नाव आशुतोष. मला एक छोटा प्रश्न विचारायचा होता की आता बऱ्याचदा हे जसं म्हटले धर्मग्रंथ वगैरे, तसं बांगलादेशमध्ये मी असं ऐकलं की तिथल्या लोकांना बंगाली समजतं पण वाचता येतं फक्त अरेबियन, नाही काही काही ठिकाणी, आणि मग ते फक्त असं पाठ केलेलं वगैरे बोलू शकतात. मतलब वो जानबूझ के समझ के कुछ कर रहे ऐसे वे नहीं बोल सकते. नहीं, यहाँ भी वही हाल है ना. हाँ, तो मतलब सारा का सारा किताब में ही है ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? उनको समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर क्या लिखा है. अरे हमको नहीं मालूम हो क्या समझ. वी कैन रीड, इट्स वेरी ऑड. आप भाषा पढ़ रहे हो मगर क्या क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा, वही चलता रहता है एक्चुअली. और बाद में मुल्ला लोग चिल्लाते रहते हैं फ्राइडे के नमाज के टाइम पे, दिमाग खराब हो जाता है यार. हाँ वही. हॅलो, हाँ बोलिए. 4 है, 2 पे आ गए तो 4 अलाउड है, 2 आधा कर दी. धर्मेंद्र ने किया, आपने कितने किए? नहीं, 1 2 3 4 5 मना नहीं किया उसमें, वो भी लफड़ा है दूसरा. हाँ, एनीवे आपको एक छोटा एक जोक बता दूं इस पर. ये जो आर्टिकल 377 है ना अपना गे लेस्बियन राइट्स को लेकर, तो सभी धर्मगुरु क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सब बाबा रामदेव बोला प्रणाम करेंगे तो गे लेस्बियन रहेंगे नहीं, ठीक है. तो अरे वही तो बोले प्रणाम करेंगे. ओके, फिर अपना क्रिश्चियन पादरी भी उसी को लेकर प्रणाम ही वही एक्सपीरियंस. तो वो सब चल रहा था, साधु संत आ रहे थे, क्रिश्चियन पादरी और अपना मुस्लिम पर्सनल अवार्ड की कोई ना कोई आता था. तो पहले तो वेटिकन से क्लियर कट हो गया कि गे लेस्बियन अलाउड है, तो पादरी लोग गायब हो गए. बाद में बचा ये अपने हिंदू और पंडित और मुस्लिम मौलाना. आरएसएस वाले भी बोलते हैं कि वह अलाउड है, तो बाकी का कोई बचा मुसलमान, ठीक है. तो आर्टिकल 377 जब भी होता है तो कोई ना कोई मुसलमान आता है. इसमें वो जो माइनॉरिटीज़ कमीशन को कौन है यार वो दिल्ली में जो आते रहते टाई सूट पहन के लॉयर वॉयर है, हाँ कमाल फारूकी आप देखते होंगे उसको. तो कमाल फारूकी एकदम लिबरल बनने की कोशिश करते हैं. वो उसको बोलना तो वही है कि ट्रिपल तलाक है तो है, मगर उसको एकदम लिबरल तरीके से बोलने की कोशिश करते. तो उसको वो क्या बोलते मालूम है, आप हैरान हो जाओगे वो क्या बोला. वी डू नॉट माइंड इफ गेज remain gays and lesbians remain lesbians as long as they do not indulge in sex. बोला, और एंकर को समझ नहीं आया बात, इस साल क्या बोल रहा. मतलब ब्रह्मचर्य गे ब्रह्मचर्य लेस्बियन रहो मगर. तो द पॉइंट इज दैट ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसमें इस्लाम अभी सबसे पीछे है. सबसे नया धर्म भी है, आई मीन सिखिज्म एंड ऑल आर डिफरेंट. इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे धर्मों में हो गई अभी ये होने लगी है. खाली हम लोग जिस युग में हैं, ये जो कम्युनिकेशन, ये जो सोशल मीडिया, उसमें से जो चेंजेस आएंगे वो काफ़ी तेज़ी के रफ्तार से भी है. और इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अभी जो हाल ही में जो रिफॉर्म का प्रोसेस मूवमेंट चला है मुसलमानों में, इट इज़ बीइंग लेड बाय मुस्लिम वुमेन. ये जो भारतीय मुस्लिम आंदोलन है, ओके, वो चुपचाप अपना काम करते रहे. आम साधारण औरतें, मतलब बॉम्बे में जो उनका सबसे एक्टिव यूनिट है वो बांद्रा ईस्ट का स्लम में पॉकेट है. तो आम मुस्लिम औरतें जो ये आंदोलन को लीड कर रही है, ओके, चाहे वो हाजी अली का मूवमेंट हो, चाहे वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो, ये और बाकी के आंदोलन में भी वो सब आंदोलनों में शरीक है. मगर और आप टीवी पे भी देख रहे होंगे कि अगर ये मौलाना वर्सेस मुस्लिम वुमेन डिबेट हो रहा है तो मुस्लिम वुमेन इनको कच्चा चबा डालती है. इट इज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. तो वो रिफॉर्म मूवमेंट बढ़ रहा है, मुस्लिम औरतें इसको लीड कर रही है. दाऊदी बोरा कम्युनिटी में भी जो जेनिटल म्यूटिलेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ भी वो औरतों ने लीड करके उसको वो चेंज की तरफ ला रहे हैं. तो इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग विद इन द मुस्लिम मूवमेंट, बट इट इज़ बीइंग लेड बाय मुस्लिम विमेन. और अनवर भाई और हम लोग जावेदान ने मिलकर और एक मूवमेंट 2002 में हुआ था, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी. उसमें बड़े बड़े नाम थे, वो टाइम पे काम करने वाले ज़्यादा थे नहीं. मगर अभी वापस एक कार्यकर्ता की, चाहे वो कोई सेवा दल का हो या गांधीयन मूवमेंट का हो, समाजवादी, मार्क्सवादी, अम्बेडकरी, फुले, मतलब अलग अलग प्रोग्रेसिव धारा के जो मुस्लिम साथी है उनको लेकर हम लोगों ने वापस इस मूवमेंट को बनाया. तो क्योंकि ये जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, ये वो सबके अपने अपने राष्ट्रीय संगठन है. प्रोग्रेसिव मुसलमानों का एक राष्ट्रीय समूह, एक राष्ट्रीय संगठन स्ट्रॉन्ग बहुत जरूरी है. यस, टेक द माइक. माझं नाव जामवंत मनोहर आहे. हिंदी में पूछता हूँ आपके लिए. मैं सोच रहा हूँ कि धर्म की तो बात हो गई, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय दहशतवाद का और गरीबी का भी कुछ संबंध है.
देखिए, मैं वापस बोलता रहा हूँ, बम्बई से जो लोग गए, कल्याण, मीरा रोड, मुमरा, वो सब पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल अपर क्लास मिडिल घर के लोग थे, ठीक है। कुछ लोग जाते होंगे क्योंकि फंडिंग भी मिल रही है, मगर जो लीडरशिप है और जो आइडियोलॉग्स है वो पढ़े लिखे लोग हैं, ओके। तो ये अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई भी झोपड़पट्टी का बंदा इंडिया से इराक वगैरह नहीं गया या सीरिया नहीं गया, ओके। मेन प्रॉब्लम है, मैंने वापस वही बोला था कि सेक्युलर एजुकेशन एंड व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डू वी हाउ डू वी काउंटर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। जो भी धार्मिक कट्टरवाद है सभी धर्मों का, उसको हम लोग कैसे काउंटर करें और उसका क्या उत्तर दें। सर, मग तुमचं इनडायरेक्ट म्हणणं असं आहे का मदरशातून धार्मिक शिक्षण न देता मग सायन्सचं वगैरे शिक्षण? नहीं, धर्म का शिक्षण दो ना, हम लोग क्या मना कर रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं भी संकट में आता हूँ, ऊपर वाले को याद करता हूँ यार, उनको नहीं फ़ोन करता मैं, ठीक है ना। तो पॉइंट इज़ सबको अपनी अपनी ज़रूरत है धर्म की, ठीक है ना। एग्ज़ाम का टाइम हो या जो भी हो, या करते हम लोग याद, सो दैट इज़ नॉट द इशू। मेरा बोलना है कि वो धर्म की वैल्यूज़ क्या होगी। आप ये बोलोगे कि मेरा ही धर्म सही है, बाकी के सब काफिर है, तो मुझे वो धर्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दैट इज़ द पॉइंट। एक सभी धर्म, हम लोग जब सर्वधर्म समान की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है, ओके। व्हाट इज, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड, 90% इन ऑल रिलीजन इज गुड, वो 10% क्या है उसके पे बात करनी पड़ेगी हम लोग को। हाँ, तो एक सेकंड। Hello. Somebody said about what we can do. Long back in 1948, Vinobaji had suggested one small thing in Indian context, that we have got similar alphabets but scripts are different. So we should have, हम सब एक ही लिपि में लिखें. On similar lines, I would like to ask a question. If Urdu is written in Devanagari, will it be able to help us to bringing these two sections closer together? I don't think it's going to help. People are speaking the same language in Gujarat and it's not helping. So I don't think that is an answer, and I'm not a Urdu guy, so I don't know. आपको लगता है सब उर्दू वाले मुसलमान होते हैं, हम लोग है नहीं भाई। हाँ, वापस धर्म पे नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता नहीं, धर्म के साथ सत्ता जुड़ी है, धर्म सोर्स ऑफ पावर है, धर्म का कंपटीशन भी हो रहा है, मेरा धर्म तेरा धर्म वो सब भी हो रहा है, ओके। मेरा वही बोलना है कि इसके आगे एक दुनिया बन रही है और वो अध्यात्म की तरफ हम लोग जा रहे हैं, एंड आई कॉल इट द थियोलॉजी ऑफ पीस। एक विचारधारा बनती जा रही है जिसमें से हम लोग एक दूसरे से समझकर बात करके इसमें से कुछ नई पूरी दुनिया में बात है, क्योंकि ये जो संकट है दुनिया में, ओके, ये भयंकर संकट है। मतलब 1990 में इस किस्म की दुनिया की कल्पना नहीं थी कि हम लोग आज किधर पहुँच गए। इनका जो सवाल पूछने का ये था, इसमें इनका कहना ये है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए उर्दू विद्यालय की निर्मित की जाती है, तो ये एक एजम्पशन है कि हाँ, formerly at least in Maharashtra, mother tongue of Muslims was Marathi. Now they say their mother tongue is Urdu. That's a problem. And they have accepted that script, whereas Urdu, Hindi films are all Urdu, and why not bring them together so one point of segregation gets dissolved directly. Anwar bhai is right. लैंग्वेज का जो सवाल है इंडिया में, वो ज़रा थोड़ा समझ लेना चाहिए। यहाँ के जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हैं और रीजनल लैंग्वेज उन मुसलमानों की है। अभी 3 स्टेट ऐसे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कि जिसके कुछ हिस्सों में मुसलमान वहाँ की रीजनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं और मुसलमानी लैंग्वेज है, दैट इज़ नॉट उर्दू,
मुसलमानी लैंग्वेज दक्खनी, ओके। अब उनको उर्दू उनकी भाषा है ऐसा लगता है, जो घर में भाषा बोलते हैं और जो किताबों में उर्दू यूज़ होती है उसमें कोई उसका सिमिलरिटी नहीं है। ये एक सवाल है। मदरसा में कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? मदरसा धार्मिक शिक्षण देने के लिए है तो प्रायोरिटी उसकी अरबी भाषा है, और उर्दू एक उसका हिस्सा है कि उर्दू यहाँ ऐसा मानते हैं लोग कि ये अपनी भाषा है, ओके। सवाल इसके आगे भी काफ़ी है, सिर्फ यहाँ पर रुकता नहीं भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि उर्दू भाषा भी हिंदुस्तानी भाषा है। आपको शायद कितने लोगों को पता है, मुझे पता नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, इसलिए उसका अलग से जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं। दुनिया के किसी भी देश में उर्दू भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। मुस्लिम देशों में, सभी मुस्लिम देशों की अपनी अलग भाषा होती है। कुरान अरबी भाषा में, ईरान में पर्शियन भाषा है, पर्शियन भाषा अरबी भाषा से अलग है, तुर्कस्तान की भाषा अलग है, चाइना में मुसलमान चाइनीज़ भाषा बोलते हैं। बांग्लादेश क्यों हुआ? बांग्लादेश पूरा मुसलमानों का है, भाषा का उनकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी, राष्ट्रभाषा कौन सी उनकी? वो बंगाली है। केरल में इतने मुसलमान हैं, उनकी कौन सी भाषा है? आपको उर्दू से इतना झगड़ा क्यों है? जिनको लगता है कि उर्दू मेरी मदर टंग है, मैं खुद मानता हूँ कि उर्दू उनकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर उनका ये कहना है कि हमारी उर्दू लैंग्वेज है, लेट देम, होने दो, पढ़ने दो। मराठी पढ़ना चाहिए तो कोंकण में तो है ना, अभी हमारा दाऊद जो पूरी दुनिया में राज करता है वो तो मराठी, कोंकणी मराठी, अच्छी मराठी बोल लेता है। मराठी बोलने से सभी बातें अच्छी नहीं हो जाती, या हिंदी बोलने से सभी बातें अच्छी नहीं हो जाती, या उर्दू बोलने से सभी बातें बुरी भी नहीं हो जाती है। भाषा भाषा है, सोच अलग होती है। सोच और भाषा दोनों अलग अलग चीज़ें। भाषा ये कम्युनिकेशन का साधन है। तो हम किसी भाषा वालों को अच्छा समझते और किसी भाषा वालों को विलेन मानते हैं। यूपी और बिहार के लोगों को ठोके तो हमको राज ठाकरे नहीं बताया ना। तो ये भाषा, कभी जात, कभी धर्म, कभी वंश, ये नफरत के हम नए नए आयाम क्यों ढूंढते हैं? No, I understand what you're saying. I understand. नरक कुरुंकर और हमीद दलवाई, इनका भी इसके ऊपर डिबेट हुआ था। हमीद दलवाई बोलते थे कि उर्दू होनी नहीं चाहिए, कुरुंकर बोलते थे उर्दू की जो हम उर्दू में पढ़े लिखे हैं तो हम उर्दू को कभी जाने नहीं देंगे। बोल। माझं नाव अनवर शेख, मी ऐकायला आलो फिरोजभाईंचं, राजांचं, डॉक्टर आणि लक्ष्मीकांत देशमुखचं. आता तुम्ही हमीद दलवाई आणि कुरुंदकर असं विषय काढला म्हणून मी सांगू इच्छितो. मी हमीद दलवाई वारल्यानंतर मुस्लिम सत्यशोधनावर एक पुस्तक लिहिलं होतं. त्यात उर्दू भाषेचा एक चॅप्टर आहे, कृपया आपण तो वाचा. उर्दूवर हमीदचा किंवा माझा किंवा राजांचा आमचा आक्षेप असा आहे की उर्दू ही फार चांगली भाषा आहे. मला येत नाही, मी ती शिकू इच्छितो आता, पण मला उर्दूचा राग आणि द्वेष नाही. पण जेव्हा मुस्लिम जातीवादी राजकारणी उर्दूचा राजकारणासाठी उपयोग करतात, उर्दू शाळा काढण्यासाठी सरकारकडे भांडतात, उर्दू शाळा काढल्यानंतर ग्रामीण भागामध्ये ती 4थीपर्यंत असते, ती मुलं 5वीला परत मराठीत जातात, त्यांच्या शिक्षणाचा बट्ट्या बळतो, शहरामध्ये ती हायस्कूलपर्यंत असते, कॉलेजला नसते, मग त्यांच्या शिक्षणाचा बट्टा बळतो, मग नोकऱ्या मिळत नाहीत, म्हणून मग उर्दूला राज्यभाषेचा दर्जा द्या अशी मागणी करतात. परत मिळाल्या नाही नोकऱ्या तर मुसलमानांवर अन्याय होतो म्हणून आरोळी ठोकतात. म्हणून महाराष्ट्रामध्ये मुसलमानांनी आपली मातृभाषा मराठी आहे, मराठीतनं आपली मुलं शिकवावी, आणि उद्या ब्राह्मणाच्या एखादं वाटलं की उर्दू भाषा शिकावी तर त्याला शिकण्यासाठी सुद्धा सोय असावी, असं हमीद दलवाई म्हणत होते, कुरुंदकर म्हणतोय आणि मी बोलतो. नावं सांगा स्वतःची. माझं नाव प्रफुल्लचंद्र झपके. मी प्रश्न एक मगासले सर्व धर्म समान या विषयावरचा आहे की असं काही क्रिटिकल अनालिसिस किंवा स्टडी झालेला आहे का की या पर्टिक्युलर बाबतीमध्ये इस्लाम आणि हिंदूमधले समजा की समानता आहे, या मुद्द्यावर समानता आहे आणि एक्झॅक्टली या स्पेसिफिक मुद्द्यावर देर इज कॉन्ट्राडिक्शन. असंच निळ्या धर्मामध्ये
असं काही स्टडी झालेला आहे का? मग बहुत केलं आहे. इनका वो 4 शादी का सॉल्व करते हैं इनका. धर्मनिरपेक्ष नाही तर मंत्री ताबूत आहे तर नाचतात, गटबीत आहे ते नाचतात. हे नको व्हायला, म्हणजे राजकारणात धर्म येणार नाही. तेच होता माझा प्रश्न. सेक्युलर माझं नाव रोहन गायकवाड. सेक्युलर शब्दाचा अर्थ धर्मनिरपेक्षता आहे की सर्वधर्म समभाव आहे? आई थिंक ये दोनों है. देखिए बात ऐसी है, जो ओरिजिनल वर्ड है ना सेक्युलॉस, उसका तो बहुत खतरनाक मतलब है, विच इज़ नॉट ऑफ गॉड. वो इंडिया में चलने नहीं वाला, ठीक है ना. नहीं, वो रियलिटी है. इसलिए आज़ादी के संघर्ष के दौरान ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हो गई थी. ओके. और इसलिए मैं मानता हूँ कि स्टेट धर्म निरपेक्ष हो, हम लोग सर्वधर्म संभव की भी बात करें, ठीक है. प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ सर्वधर्म सेम भाव हो गया है, अलग अलग भाव मिलता है, सेम भाव होता है, भाव तो अलग हो रहा है धर्मों का, ठीक है. मगर सर्वधर्म समभाव भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें धर्म और संस्कृति का जो रोल है समाज में. ओके. व्हाट सेक्युलरिज्म डज, हम लोग क्या बोलते हैं कि धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं होना चाहिए. एक्चुअली सेक्युलरिज्म डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन. एक रिश्ता क्या होना चाहिए स्टेट का और धर्म का, वो सेक्युलरिज्म डिफाइन करता है. ओके. तो एक लार्जर मतलब चर्चा उस पर एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो क्राइसिस हम लोग गुजर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ अभी 5 दिन वहीं बैठे थे, वगैरह वगैरह जो हो रहा है. मगर कोई अजमेर भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, वो सब जो होता रहता है इलेक्शन के दौरान. अभी दुर्गा पूजा को लेकर भी इसने जो मुहर्रम का लफड़ा कर दिया था ममता बनर्जी, कि दुर्गा पूजा मत करो, पहले मुहर्रम का करो. ये सब बहुत खतरनाक कार्ड है, ये सब चीज़ों को लेकर. ओके. एक मैं ये पूछना था, मेरा नाम संदीप बर्वे है. आईसिस और ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आए, और उनके कुछ एक्सपीरियंस का कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, ऐसा कुछ शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली जो बम्बई में हम लोगों ने कोशिश की थी, मगर वो परिवार बात नहीं करना चाहते. ओके. मगर मेरा एक दोस्त है कुणाल मजुमदार, वो एक ऑल इंडिया लेवल का एक स्टडी करने जा रहा है इसी मुद्दे को लेकर, कश्मीर, केरला, हैदराबाद, बॉम्बे, ये 4 जगह को लेकर. मगर इस पर अभी तक कोई स्टडी हुआ नहीं है. मगर इतना भी सबको बता दूँ, इंडियन स्टेट काफ़ी सेंसिटिव भी रहा है. जो लड़के चले गए थे, एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, उनको भी वापस उनको संभाल के घर पहुंचा दिया है. ये भी इंटरेस्टिंग बात है. ओके. तो नहीं, थप्पा नहीं लगा दिया, उनको रीइंटीग्रेट कर दिया. जब घर वालों को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, उन्होंने पुलिस को बता दिया. वो एयरपोर्ट तक लड़का पहुँच गया था और उनको वापस ले लिया था. कल्याण का है ना. मेरा नाम शिव प्रसाद ढके. सर, अभी जो आपने बताया जो यूएस लेड एक्सिस है, उसके वजह से सब मतलब थोड़े और प्रॉब्लम हो रहे हैं. अगर ये एक्सिस जर्मनी जाता है या जर्मनी फ्रांस एक्सिस होके अगर मतलब वो एक्सिस डिवाइड हो जाता है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या कि जर्मनी भी यूएस ही फॉलो करेगा? देखो, अभी तो जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन सब एक ही एक्सिस में हैं. मगर अभी कुछ फ़र्क आ रहा है. वो फ़र्क आ रहा है रशिया को लेकर. ओके. क्योंकि रशिया पे जैसे जैसे सैंक्शंस ये लोग डाल रहे हैं, खासकर ऑयल और गैस को लेकर, तो ये नुकसान यूरोप को हो रहा है, अमेरिका को नहीं हो रहा है. अमेरिका को यूरोप अपना मार्केट बढ़ा रहा है. ओके. और जर्मनी जो सबसे बड़ा पावर है आज यूरोप का, वो क्लियर कट अमेरिका को बोल रहा है. दूसरे भी कुछ देश है यूरोप के जो अमेरिका को बोल रहे हैं कि आपका जो रोल हमारे रशिया और इसके बीच में है, वो उससे हमको नुकसान हो रहा है. तो एक रीअलाइनमेंट स्लोली हो ज़रूर रहा है. और उसमें अगर जर्मनी और रशिया के बीच में एक संबंध बनता है, तो बहुत उसका फ़र्क आने वाला है. डेफिनेटली. क्योंकि बाकी के जितने पावर्स है, P5+1 जिसको बोलते हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका. ओके. तो उनमें अमेरिका तैयार नहीं था, मगर ओबामा को फाइनली समझ गया था कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ईरान का जितना मार्केट है वो ये सब यूरोपियन देश लेके जाएंगे. ओके. और अगर ट्रंप ने अगर ये कर दिया ना, अगर ये ईरान के साथ उसने अगर समझौता तोड़ दिया, तो उसमें अमेरिका आइसोलेट होने वाला है. माझं नाव सुरेंद्र लटपटे. माझा क्वेश्चन असा आहे की
मदरशामध्ये भारताचा झेंडा म्हणजे 15 ऑगस्टला किंवा 26 जानेवारीला का म्हणजे काही मदरसे फडकवत नाहीत, म्हणजे त्या मदरसेचा झेंडा फडकवतात, तर ते कशामुळे का? फ्लैग झंडा मदरसे दोन कहा नहीं जाता। आप नहीं हाँ ये कंपलसरी है क्या झंडे लगाना? यूपी में अभी हाँ नहीं हमने खाली मदरसों के लिए कंपलसरी किया है। योगी के मंदिर के ऊपर तिरंगा है। पहिले राष्ट्रध्वज हा ज्यांची तक्रार आहे फडकवलं जात नाही तेही कधी आपल्या शाखांवर फडकवत नव्हते। ते डॉक्टर सप्तर्षींनी अनेक वेळेला सांगितलेलं आहे, शाखेवर फडकवत नाही, त्यांच्या कार्यालयावर लावला होता वाटतं यावेळेला। 15 ऑगस्टला त्यांनी काळे झेंडे लावले। हां, आणि 81 साली 47ला परत पुण्यामध्ये 81 साली संघाच्या लोकांनी वेगळ्या नावाने एक संघटन होतं त्यांचं आजही आहे ते, त्यांनी 15 ऑगस्ट हा काळा दिन पाळला होता आणि त्या दिवशी काळे झेंडे लावले होते प्रकरणामध्ये, आणि त्यामुळं त्यांचीही तक्रार आहे। आता राहिले मद्रसे। मद्रसे या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत। एक, लहानपणीच मुलांना मशिदीमध्ये पाठवतात आणि तिथं धर्माचं शिक्षण म्हणजे फक्त आता सांगितलं ना आपण फिरोजबाईंनी की पाठांतर फक्त कुराणाचं, अर्थ वगैरे काही नाही। बाकीची मुलं आपण मैदानावर खेळायला पाठवतो किंवा बालवाडीत पाठवतो, ते मद्रसेत पाठवतात वेद पाठशाळेसारखं, आणि ते पाठांतर मुली जातात मुलंही जातात। हो, म्हणून तो एक मद्रसा। तिथं मशिदीवर काय तिरंगा झेंडा लावायचा काही प्रश्नच निर्माण होत नाही। कुठल्या मंदिरावर लावतात का? ऐका ना, 15 ऑगस्ट मंदिरावर झेंडा लावतात काय तिरंगा 15 ऑगस्टला? मग मशिदीवर लावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही। ऐका ना, त्या मशिदीमध्ये एक मद्रसा असतो, त्यामुळे तिथं हा प्रश्न उद्भवत नाही। दुसरं, सरकारचं अनुदान घेऊन ज्या उर्दू शाळा चालवल्या जातात त्यालाही मद्रसाच म्हणतात, तिथं तिरंगा लावला जातो। पण काही मद्रसे जशा खाजगी शाळा आहेत आपल्याकडं, सरकारचं अनुदानही घेत नाहीत आणि त्या शाळा चालवतात, तसे उत्तर प्रदेशामध्ये काही ठिकाणी खाजगी अनुदान न घेता जे शाळा चालवल्या जातात ते तिरंगा झेंडा लावत नव्हते, त्यांच्यावर ते बंधन नाही, ते सरकारची कुठल्याही आज्ञा पाळत नाही। आपल्या पुण्यात सुद्धा अनेक ख्रिश्चन मिशनरी शाळा आहेत, ते कुठलंही सरकारचं अनुदान घेत नाहीत आणि सरकारचे कुठलेही नियम त्यांच्यावर बंधनकारक नाहीत। आणि ख्रिश्चन नसलेल्या शाळा ही ते पाळत नाही सरकारचं, ते म्हणतात आम्ही तुमचं अनुदानच घेत नाही, तो आम्ही तुमचं कुठलीही ऑर्डर, आमची परीक्षा कधी घेऊ, आम्ही काय करू, किती डोनेशन घेऊ, झेंडा लावू का ना लावू, आम्ही काही पाळणार नाही। हा प्रश्न फक्त मद्रसांपुरता निर्माण केला जातो, कारण जातीय द्वेष पसरवण्यासाठी त्याचं राजकारण केलं जातं। सर, माझं नाव राजेश वाणी। तुमच्या एका व्हिडिओमध्ये मेन्शन केलेलं होतं की इफ अमेरिका स्टॉप फंडिंग द टेररिझम instead of sending the army, this particular conflict will get over. This is one side. Second side, you are saying that Palestine, that Middle East issue, the main issue, they are asking for 22% of their own land back, in which they are talking about Gaza, West Bank and East Jerusalem. East Jerusalem. Of course, Jerusalem is Jerusalem. If Jerusalem is the center of conflict, then how do you see this problem would get resolved? Even if tomorrow America stop funding the terrorism, and if Palestine is harping upon having Jerusalem, then is there any end to this particular conflict? How do you look at it? See, the point is that Palestine is not harping, it is theirs. Actually, the entire land is theirs. European settlers were sent. ओके ये बहुत एडवांस लोग थे, क्योंकि पैलेस्टाइन एक पेजेंट सोसाइटी थी, इट वॉज पार्ट ऑफ सीरिया, तो इट वॉज एन एडवांस्ड यूरोपियन सोसाइटी, और उसमें बहुत सारे जो जूस थे वो वेस्टर्न आर्मीज के पास
लाइट आने के बाद आप पैलेस्टाइन बोल रहे हैं। So point is it can be resolved. हेलो, it can be resolved very easily. ठीक है, मतलब आप सोचो कि आज़ादी की एक संघर्ष बोलते हैं कि हम लोग अपना 78% लैंड आपको दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, खाली 22% दे दो, ठीक है। और उसमें जेरूसलम विल रिमेन ए यूनाइटेड कैपिटल, वो कोई डिवाइडेड सिटी नहीं होने, दीवार बना दिया ये तुम्हारा हमारा वाला मामला नहीं है। तो एक यूनाइटेड कैपिटल रहेगा, जैसे चंडीगढ़ है पंजाब हरियाणा वाला मामला, वैसे ये यूनाइटेड कैपिटल रहेगा, ओके। और हमारा मानना है एक्चुअली बहुत सारे लोग का कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन भी आगे जाके 1 स्टेट सोल्यूशन बनेगा। जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होते जाएगी तो ये वापस एक ही लैंड में दोनों लोग रह सकते हैं, क्योंकि ये बॉम्बे पूना वाला देश है भाई, 4 घंटा लगता है। पैलेस्टाइन बहुत छोटा देश है, ओके। उसको आप कितना बांटोगे और क्या करोगे वो लोग के साथ। बट पॉइंट इज़ के नेल्सन मंडेला ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि हमारी आज़ादी आधी है। जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था तो नेल्सन मंडेला का जो कमिटमेंट था कि हमारी आज़ादी अधूरी है जब तक पैलेस्टाइन आज़ाद नहीं होता, ये उनका स्टेटमेंट था नेल्सन मंडेला का। और फादर डेस्मंड टूटू ने कहा कि जो अपार्थाइड सिस्टम अभी इजराइल में है वो हद तक तो हमारे साथ भी नहीं हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो जिस प्रकार से मीडिया कंट्रोल में है ये लोग के, और जो खतरा है हमारे लिए, ओके, इंडिया में भी, कि हम लोग को ये सीखना पड़ेगा अमेरिका वालों से कि, और सीखना मतलब समझना पड़ेगा कि कैसे कांग्रेस, सेनेट, उनका बैंकिंग सिस्टम, मीडिया सिस्टम, हॉलीवुड, ये सब उनके ताबे में कैसे गया है, ओके। और यही खतरा होगा हमारे देश में कि किस प्रकार से, मतलब एक छोटा एग्जांपल दे दूँ, वो जो एक बाराक मिसाइल डील थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लाई थी, बाराक मिसाइल डील थी 1200 करोड़ की और किकबैक थे 400 करोड़। मतलब वो किस लेवल पे पैसे बांटेंगे और किस प्रकार से आपके मिनिस्टर, आपके जनरल, आपके रॉ, ये सबको खरीद कर, क्योंकि उनका टारगेट है ऊपर के 500,000 लोग को खरीद लेना, नीचे तो हम लोग सब कठपुतली है, फिर हम लोग अपना धरना मोर्चा करते रहो भाई, ओके। बट दैट इज़ द वे दे ऑपरेट। इसलिए अमेरिका तो उनका है ही, वहाँ संघर्ष चल रहा है, मगर उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इंडिया है। ये हमारे लिए बड़ा खतरे की बात है। आपल्या कार्यक्रमाचा वेळ संपत चाललाय, म्हणून शेवटचा प्रश्न घेऊया आपण। हाँ, प्रकाश ढोबळे, ये जो सीरिया से जो रिसेंट एक्सोडस हुआ और जर्मनी में गए कितने सारे सीरियंस, उसका क्या रीज़न है और व्हाट वाज जर्मनीज इंटरेस्ट इन वेलकमिंग देम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important question. There's a new term called the weapon of mass migration. WMD है, WMD है ना, weapon of mass destruction. वैसे there's another weapon used to destabilize countries called the weapon of mass migration. Okay? जिसका मतलब है कि you can destabilize countries by sending in refugees. ये यूरोप को रेफ्यूजीज जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये टर्की ने दरवाजे खोल के दिए, ओके। देखो, टर्की, एर्दोगान इज ट्राइंग टू बिकम द न्यू खलीफा। ऑटोमन एम्पायर था, तो एर्दोगान मान के चलता है कि जो ऑटोमन एम्पायर थी वो हमारी थी और वापस उसको बनाना है। तो इसलिए जो तरीका ओबामा का था कि असद को हटना चाहिए, एर्दोगान भी वही तरीके से बात कर रहा था, क्योंकि 400 साल उन्होंने उन देशों पर राज किया है, ठीक है। तो जो रेफ्यूजीज निकले सीरिया से, लेबनान की आबादी है 40 लाख, ओके, 4 मिलियन, दैट्स ऑल, 4 to 5 मिलियन इज़ लेबनान, वो भी बहुत छोटा देश है, वो भी सीरिया से तोड़ के बनाया था, ठीक है। एक 40 लाख के देश में और 10 लाख रेफ्यूजीज गए, आप सोचो क्या होगा उस देश का, मगर उन्होंने फिर भी संभाला, ठीक है। एंड नदर 15 लाख गए टर्की, इराक में रेफ्यूजीज, जॉर्डन में रेफ्यूजीज, सब जगह रेफ्यूजीज। एक भी गल्फ अरब स्टेट ने एक रेफ्यूजी लिया नहीं। मतलब सऊदी अरेबिया मर्केल को बोल रहा है रेफ्यूजीज तुम ले लो, हम लोग मस्जिद भी बना के देते हैं, आप सोचो, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि वॉर कैसे करे सीरिया पे, वॉर कैसे करे, केमिकल वेपन भी फेल हुआ 2013 में। तो उन्होंने जो नया जो इस्तेमाल किया, जो स्ट्रैटेजी, वो था रेफ्यूजीज़ का, कि रेफ्यूजीज़ आते रहेंगे जब तक असद नहीं जाएगा। असद अपने लोगों को मार रहा है, वो मार रहा है, इसलिए रेफ्यूजी हमारे देशों में आ रहा है, फिर आपके देशों में आ रहा है। इसलिए एक छोटा लड़के का एक पिक्चर हमारे पेपर पे आया था,
अयमान अल कुर्दी का, आपको याद होगा, एक रेड टी शर्ट में एक बच्चा दरिया के किनारे पे पड़ा था, ठीक है। एक फ्रेंच पेपर ने उस पर स्टोरी की थी, लेमॉन करके जो पेपर है, वो बच्चे की लाश वहाँ पड़ी थी, उसको वहाँ ठीक से लाए, उसको फ़ोटो निकाले और पूरी दुनिया के पेपर में इसको छाप दिया, ओके। और उसका कि ये बच्चे को देखो असद क्या कर रहा है। और टर्की से जो यूरोप जा रहे थे, ऐसा नहीं कि टर्की को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, टर्की बराबर से उनको भेज रहा था। हाँ, वो 2 किलोमीटर का वो क्रीक था, उनसे वो बोट से जा रहे थे, फिर ग्रीस लैंड हो रहे थे, फिर वहाँ से जा रहे थे। तो टारगेट ये था कि जितना ये रिफ्यूजी का क्राइसिस बढ़ेगा, यूरोप और अमेरिका पे और प्रेशर आएगा कि भाई तुम सीरिया पे अटैक करो। ये पूरा चक्कर था, ओके। जर्मनी की का एक एजेंडा है, बिकॉज दे नीड चीप लेबर। वो एक ही मात्र इकोनॉमी यूरोप में जो ग्रो हो रहा है, उसको ये चीप लेबर की ज़रूरत थी, तो मर्केल वांटेड, मगर बाकी के कोई भी यूरोपियन कंट्रीज उनको लेने के लिए तैयार नहीं था। और उसका ये नतीजा हुआ कि इस बार के इलेक्शन में जर्मनी में जो मर्केल को 40% मिलता था, वो 33% पे आ गई है, और एक फार राइट पार्टी को 12% वोट मिला है। तो ये पूरे यूरोप में ये रेफ्यूजी का क्राइसिस का जो राजनीतिक बड़ा सवाल है। और प्रॉब्लम यह है कि जिस प्रकार का, मतलब लंदन के कुछ इलाके हैं जहाँ बोर्ड लगे कि ये शरिया जोन है, और जिस किस्म के वहाँ भी उनके सड़कों पे घूमते हैं, मुझे उनको देख के डर लगता है, ठीक है, क्योंकि वो शरीयत लागू करेंगे, इस्लाम का कानून आएगा, इस्लाम ब्रिटेन पे कब्जा करेगा, ये ऐसे बोर्ड लेकर घूमते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्राइसिस रियल है, और वो एक बड़ा कल्चरल वॉर वहाँ वो चल रहा है। एंड आई थिंक इंडिया इज स्टिल बेटर टू सॉर्ट आउट दीज मैटर्स, क्योंकि हम लोग, हमारे लिए जो डाइवर्सिटी है लिविंग रियलिटी, हम लोग पैदा होता है तो ये यूरोप वगैरह ये सब बातें समझ नहीं पा रहे। इनके लिए मस्जिदें नहीं है, बुरखा वाली औरतें नहीं है, ये सब दाढ़ी वाले, मटन की मच्छी की दुकानें वगैरह वगैरह इनके सब नहीं है, ओके। सो वी लिव इन अ एटमोसफेयर इन विच वी आर ग्रोइंग अप, बट दे कैन डील विद इट राइट नाउ। एंड मुस्लिम्स विल आल्सो हैव टू रिफॉर्म, दे विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज इश्यूज। साम्य काय आहे, फरक काय आहे, पण नाही या धर्मामध्ये साम्य कुठल्या गोष्टी आणि एक्झॅक्ट कॉन्ट्रडिक्शन आहे की हुआ है बहुत से लोगों ने। राम पुनियान ये तो करते रहते बेचारे फुल टाइम। आपल्याकडे इथे नेहमी ट्रेनिंग होतात, राम पुनियानी येतात, ते हेच काम करतात। अनवर राजन भी तो को पता है इनके कुमार सप्तषी। गांधी सप्ताहाच्या प्रत्येक दिवसाच्या सत्राप्रमाणे खाली एक चीज़ बोलूँ, हम लोग को एक व्यक्ति का जन्मदिन बनाना चाहिए और उस पर एक चर्चा करनी चाहिए, वो है दारा शिको, ओके। उन्होंने जो मिंगलिंग ऑफ द ओशंस वाली किताब लिखी थी ना, उपनिषद, वेदांत, कुरान, वो सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने खाली उनकी पासिंग में बात करते हैं, मगर अगर दारा शिको का वो टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन था, और अगर वो औरंगजेब की जगह पे होता तो कुछ और बात होती, मगर उसकी हम लोग को जयंती मनानी चाहिए और उसमें एक मतलब डिबेट चर्चा होनी चाहिए, उसमें से आपकी ये बात सामने आएगी। क्या हो गया? चलो। गांधी सप्ताहाच्या आपल्या या प्रत्येक दिवसाच्या सत्राप्रमाणे हेही सत्र खूप चांगल्या पद्धतीने प्रश्नोत्तर आत्ता झालेली आहेत आणि या अशा या रंगलेल्या सत्राचा समारोप महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉक्टर कुमार सप्तर्षी यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। सर्वांनी अतिशय चांगले प्रश्न विचारलेत आणि स्पर्धा परीक्षेची मुलं जे अभ्यास करतात तो अभ्यास दिसतोय त्यांच्या प्रश्नात। ते रक्ताना ओथंबलेले म्हणतात ना, तसं आमचे सगळे स्टडीमधले मुलं असे ज्ञानानं ओथंबलेले आहेत। तर मित्रांनो, एक एक दिवस आपण नव्या नव्या गोष्टी शिकतो आणि त्यावेळेला आपल्या मनाला कुठेतरी कबुली देतो आपण की मी कालच्यापेक्षा आज श्रीमंत झालो, आणि हेच खरं महत्त्व आहे, कारण आपल्या मेंदूमध्ये एवढी ताकद आहे, पण आपण जुन्या गोष्टीच तशा धरून बसलो तर हा एकच अवयव असा आहे की वापरला नाही तर त्याला खूप घसारा येतो, बाकी गोष्टींना वापरल्यावर घसारा येतो, मेंदू वापरला नाही तर त्याला घसारा येतो। तर ह्या गोष्टी सगळ्या समजून घेतल्या पाहिजेत। याच्यात 2-3 गोष्टी आल्या। मी स्वतः इस्रायलमध्ये राहून आलो आणि माझ्या डोक्यामध्ये ते शेतीचं नव्हतं, ते एका गावामध्ये धर्म तयार झाले
म्हणजे आपल्या भारताचे सोडूनचे बहुतेक जे धर्म आहेत, जुदाइझम, इस्लाम, ख्रिश्चॅनिटी, हे एका गावात तयार झाले. त्या गावाचं नाव आहे जेरुसलेम. आणि त्या गावाचं काय झालं तर एका गावात धर्मांमुळे 2000 वर्ष रक्तबंबाळपणा, सगळे मारतात एकमेकाला. आणि त्याचे 3 राष्ट्र झाली तिथे धर्मावरनं. कारण धर्माधिष्ठित राष्ट्राची कल्पना नंतर आली, आधी धर्म झाले. म्हणजे धर्माच्या पोटात कुठेतरी राष्ट्राचं राजकारण होतंच. आणि तिथे त्याने हटवलं, जेव्हा त्यांना मिळालं हे तिथले मूळचे लोक त्यांनी हटवले. ते जॉर्डन होतं पलीकडे, तर त्याचा भाग ते पॅलेस्टाईन झाला. तर मी फिरायचो तर माझी दाढी आणि हे सगळं पेहराव बघून मुस्लिम लोक मला आपला मानायचे. आणि चौक असायचा, त्याला ज्युईश क्वार्टर एका बाजूला, पलीकडे इस्लाम क्वार्टर. तिथे गेलं तर फरक काय तर दिलीप कुमारचा सिनेमा लागलेला नया दौर त्यांच्या भाषेत. आणि मी गेल्याबरोबर ते सलाम सलाम म्हणायचे, इंडी सलाम. ते इंडियाला इंडी म्हणतात. आणि मलाही थोडं आधी माहीत सांगितलं झालं होतं, म्हणून मी उदबत्त्या घेऊन गेलो होतो. उदबत्त्या दिले की भयंकर खुश व्हायचं. परत इकडं आलो ज्युईश क्वार्टरला की श्लोम श्लोम म्हणायचे, श्लोम श्लोम सलाम सलाम. इकडे भेटायचा डेव्हिड, तिकडे भेटायचा दाऊद. डेव्हिड हे ज्यू नाही. म्हणजे आपण आहे त्या कमी मटेरियलमधून अधिकाधिक धर्म काढण्याची ओढ लागली मनाला. बरं, दिसायचे सगळे सारखेच लोक जेरुसलेममध्ये, वंश एकच आहे. म्हणजे वंश एक आहे, माहिती एक आहे. कुणीतरी देवाची कल्पना काढली, कुणीतरी स्वर्गाची नरकाची काढली, कुणी कायमतचा दिन काढला. तेवढं कॉमन घेतलेलं. मगापासून चाललं ना कॉमन काय, कॉमन एवढंच आहे, मेला की स्वर्ग राहतील का, बरं का. आणि त्या स्वर्गाचं आमिष दाखवून त्याला पृथ्वीवर जगण्याचं नरक तयार करायचं. आणि याच्यामध्ये सारख्या लढाया त्यांच्या. येशू ख्रिस्त हा मूळचा जीव ओबीसी होता, म्हणजे सुताराच्या घरात जन्मलेला, बरं का. ओबीसी अलीकडे दंग्यात पुढे असतात आपल्याकडे. तर तो 9व्या वर्षी गेला. त्याला 9व्या वर्षी जे कळलं ते आपल्याला आत्ता ह्या वयात का कळू नये हे मला प्रश्न आहे. जे आणखीन वयस्कर झाले ते एकाच एक विचाराने त्यांचा मेंदू थोडासा राट झाला असेल तर त्याच्यात नव्या गोष्टी येणार नाही. पण नवीन अजून मेंदू ज्यांचा आहे त्यांच्यात आल्याच पाहिजे. तो 9व्या वर्षी त्या याला गेला, वडिलांबरोबर यात्रेला, मंदिरात गेला त्या. आणि तो स्तब्ध झाला बघून हे काय चाललंय म्हणून. तिथं असे जीव पुरोहित बसले होते आणि ते घंटा वाजवायचे आणि त्याच्यापुढे रांग लागलेली लोकांची. आणि आईवडिलांचं हा उभा आहे तर असे गेले की त्यांची ताटातूट झाली त्या दिवशी. म्हणजे नंतर तो सापडेना, घरी आलो लक्षात आला हा मुलगा गेला म्हणून परत गेले, तो तिथंच उभा होता. आणि तो काय पाहत होता तर धर्माचे पुरोहितापुढे एक एक यायचा आणि असं विचारायचा, मला मोक्ष हवा आहे, हे तर झालंच धर्माचं काम. आणि दुसरं, माझ्या बापालाही धर्माने पोहोचले तर स्वर्गात गेला का नरकात गेला. बापाची चौकशी करायची. पुढच्या पुत्रांना फार आवड असते बरं का, वर्ष श्राद्ध वगैरे तेच असतं ते, की कुठे गेला की ते माझं दहान लावणार, घंटी वाजवणार, उदबत्त्या वगैरे असं अंगात आल्यासारखं ना म्हणजे त्यांना दिसतोच आहे. गेला 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 गेला, चौकात आला, आला, स्वर्गाकडे जाणार होता पण तिथंच थांबला, लटकला. काही पण सांगायचे. आता खाली पडणार तर त्याला इथलं हे लोकी जे वाटतं ना अंतर, चंद्र मंगळ, तिथून बाप खाली पडणार. म्हणजे बाप किती मला मारत असतं तरी असं नाही पडायला पाहिजे. मग आता काय करायला पाहिजे असं तो बापाच्या प्रेमानं मुलगा विचारायचा. की मग तो सांगायचा, बकरं काप, एवढे पैसे दे. हे त्या याने मुलांनी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बघितलं आणि तो शॉक झाला. आणि मग तो सांगितला धर्म असा नाही. म्हणून तो आजूबाजूला गोरख्यांमध्ये, शेतकऱ्यांमध्ये दया, शांती, क्षमा हे सांगायला. आणि तो लोकांना खूप आवडला. मग असा आवडला म्हणून सत्तेनं आणि सत्तेच्या जवळ असणाऱ्या पुरोहितांना त्याला क्रुसावर दिलं. आणि नंतर ग्रामीण भागातल्या लोकांना नेहमीच उशिरा कळतं, कारण मीडिया वगैरेचा प्रसार. त्यानं नंतर कळलं की हा येशू ख्रिस्त मेला आणि तो आपला होता म्हणून मारला.
आणि म्हणून ते गुड फ्रायडे आहे, ते उपास आहेत 30 दिवस. आणि त्याच्यामध्ये एक आर्त अशी प्रार्थना आहे, अरे तू आमच्याकडे आमच्यासाठी क्रुसावर गेला हे आम्हाला कळलंच नाही, आता कळलंय तर तू ये परत. आणि परत तो 1 महिन्याने येतो येशू ख्रिस्त. म्हणजे तेव्हापासून नवा येशू ख्रिस्त येणार वगैरे अशा कल्पना आहे. तर मुद्दा असा आहे, धर्म त्या काळातल्या राजकारणातून जन्माला येतो, त्या काळातल्या माणसांना एकत्र आणण्यासाठी येतो. आता कधी काळ पुढे गेला तर कुठलाही धर्म इरिलेव्हंटच होतो, कुठलाही धर्म पुढच्या काळामध्ये. म्हणून ज्याला त्याला धर्म, तर आत्ताच्या मानवतेने ठरवलं की बुवा लोकशाही असावी, मानवता असावी, सर्व धर्माचा समभाव असा, हाच धर्म आहे. आपली कॉन्स्टिट्यूशन हाच धर्म आहे ना आपला, याच्यापेक्षा आणखीन कुठला आहे. 25 जानेवारीपर्यंत जेवढे धर्म होते त्या धर्मामध्ये स्त्री पुरुष समानता कुठेच नाही आहे. जुने ट्रायबलचेच लोक आहेत. आता हे जे आहे काय म्हणाले, इब्द म्हणजे बदलायचं नाही का, क्या बोल रहे थे आप, वो आइडिया है कि ये आखिर का धर्म है, ये बदलेगा नहीं, प्योर, क्या नाम उसका, टर्म क्या इस्तेमाल किया, नाही परफेक्ट आहे पण एक काहीतरी टर्म आहे, इस्लामिक टर्म आहे. तर तो आता याच्यात काही बदल नाही करायचा, म्हणजे नाही वहाबी नाही. तर याच्यामध्ये तुम्ही किती पुढच्या पिढ्यांचं भविष्य मारता, केवढी क्रूर कल्पना आहे की याच्यानंतर कुठली कल्पनाच येणार नाही माणसाला. म्हणजे माणसाला मेंदू असून त्याला संपूर्ण 100% मठ्ठ करतात. आणि तुम्ही आज समजू नका की माणसाला मठ्ठ करण्यात येत नाही म्हणून. RSSचं सगळं संघटन या बेसिसवर आहे की लोक जोपर्यंत शहाणे असतील तोपर्यंत कठीण आहे, म्हणून ते शिशुशाखा काढतात आणि तिथं सांगतात वर भीम पडलेत, बाकीच्यांनी विचार करायचं कारण नाही. अगदी प्रयत्नपूर्वक म्हणजे मेंदूलाच प्रशिक्षण देऊन मेंदू वापरायचा नाही अशी व्यवस्था करतात. तर जे कोणी धर्माचा अनपणाने आपल्या धर्माचा अभिमान बाळगतात आणि दुसऱ्या धर्माला कमी समजतात, ते सगळेजण बालबुद्धीचे असतात, मतिमंद असतात आणि रिफ्युजल टू थिंक असतं. म्हणजे ब्रेनचा वापर असं तो करायचा नाही, असं जी माणसाची सर्वात जास्त शक्ती आहे मेंदू, तोच वापरायचा नाही असा निर्णय घेतलेले मानव असतात. हे सगळं सिद्ध होऊन शहाणे लोक आपल्या शहाणे म्हणजे जे ब्रेन वापरतात आणि लोकांना ब्रेनलेस करून आपली सत्ता त्यांच्या ब्रेनवर त्या मानवतेवर हे करतात. तर आता जगामध्ये असं चाललं आहे की डिस्टॅबिलायझेशन करायचं असेल तर धर्माचा वापर केलाच पाहिजे. एकेकांपेक्षा भयंकर आहे, अणुबॉम्बपेक्षा भयंकर आहे. डिस्टॅबिलाय अस्थिरता निर्माण करायची. ज्याला कोणावर आपल्याला कब्जा करायचा आहे तिथं अस्थिरता आली पाहिजे आधी. म्हणजे जसजशी आपल्या देशात असते तसं मल्टीनॅशनल खुश होत असतात, कारण मग इलेक्शनला जो देईल तो त्यांचे इंटरेस्ट करतो ना. इलेक्शनला पैसा देणं ते एजंट तयार करतात, त्यांना पॉलिटिक्सचं ते एजंट मानतात. ते धर्मही मानत नाही, ते फक्त पॉलिटिक्स मानतात. पॉलिटिक्स म्हणजे सत्ता कशी संपादन करायची आणि त्याप्रमाणे धर्माच्या लोकांना एजंट मानतात, पाहिजे तेव्हा ठेवतात. आणि बैरागी काय लागेल तेवढे मिळतात. बैरागीन वगैरे आपल्या देशात जास्त आहे, त्यांना फार आकर्षण आहे, कारण इथे सर्वात जगातलं मोठं मार्केट आहे. म्हणजे पैसे जेवण खाण करून हा गरीब देश आहे, पण जगातला सगळ्यात मोठं मार्केट आहे की खाऊन पिऊन उरले तर मॉलमध्ये जाणार ना. तर असे 50-60 कोटी आहेत आणि तरी हा गरीब देशामध्ये असलेला श्रीमंत वर्ग राहतोय. तर त्याला उरलेल्या लोकांना त्यांनी बंड करू नये म्हणून अस्थिर ठेवणं आवश्यकच आहे. आणि अस्थिरतेचं मेन असतो ते जेरुसलेममध्ये मी पाहिलं, द्वेष. जिथे द्वेष असतो तिथे देश कधीच असू शकत नाही. तर तो द्वेष पसरत राहायचा. आणि म्हणून याच्याकरता आम्ही युक्रानमध्ये जे सांगितलं की तू कोणत्या धर्माचा, तर सरळ ताठ म्हणायचं मी 12 धर्मांचा, कारण माझ्या देशात 12 धर्म आहे. आयडिया ऑफ भारत जे आहे, भारतीयत्वामध्ये 12 धर्म आहे. मी सगळ्या धर्मांचा अभ्यास करतो, सगळ्या धर्मातलं वाईट टाकून देतो आणि सगळ्या धर्मातलं चांगलं घेतो. जे माणसाला माझ्या देशाला नागरिकांनी एकमेकाला जोडण्याकरता जे बंधुत्व आहे ते मला जिथं मिळेल तिथून घेतो. अशी भूमिका घेतल्यावर प्रश्न असा येतो की दुसऱ्या धर्मातला, मग यांनी फार चांगलं सांगितलं
की त्याचा माझ्यावर विश्वास कसा बसणार. म्हणजे त्याला हे पाहिलं पाहिजे ना, तू तुझा माझ्या धर्मातल्या चुका दाखवायला लागला तर कशावरून तू माझा शत्रू नाहीस. आणि त्यापेक्षा मी झापडच घालून घेतली माझ्या मेंदूला, ऐकायचंच नाही दुसऱ्याचं. तर हे फार मोठं हत्यार आहे. म्हणून कार्यकर्त्यांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी किंवा राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी, ज्यांना राष्ट्र टिकावं असं वाटतं, त्यांनी एक पथ्य पाळावं लागतं. त्याला प्रथम, कारण तो वाढलेला आहे, अक्कल आली 18 वर्षाला कायद्यानं म्हणा किंवा येते साधारण त्याच्या आसपास, त्याच्या अक्कलेनं त्याला स्वतःच्याच मेंदूमध्ये अनुभवाला आलेले दोष आधी दिसले पाहिजेत. कारण दुसऱ्याचे परदुःख आहे आणि स्वतःचं स्वदुःख आहे. तर स्वतःच्या जातीमधले दोष, स्वतःच्या धर्मामधले दोष दिसले आणि तो बोलायला लागला, आपोआप उरलेल्या 11 धर्मामध्ये विश्वास निर्माण होतो. आणि मग त्याच्याकडनंच त्याचे दोष कळतात आपल्याला. आणि सगळ्या दोषांच्या विरुद्ध असलं पाहिजे आणि सगळ्या द्वेषांच्या विरुद्ध असलं पाहिजे. मी हमीद अल्वाय माझा सक्का मित्र म्हणून त्याला मी एकच प्रश्न विचारायचा की तू मुसलमानांना सुधारायला निघाला तर आमच्या समाजवादी मंडळीतला तू राष्ट्रसेवा दलातला, म्हणून मी शहाणा आणि ते अडाणी आहेत, म्हणून मी आता त्याचं बघतोच, प्रबोधनच करतो. म्हणजे मी आहे, मला अक्कल ती त्याला नाही. तर अशी भूमिका घेऊ नको बाबा, करतोच त्याचा म्हणजे धरतो मुंडकं त्याचा असं. तर उद्बोधन कर, त्याच्या डोक्यात जो अंधार आहे तेवढा प्रकाश टाकता येतं का तेवढा. आणि अनलेस अँड यू लव्ह पीपल, तुम्हाला त्यांना काही शिकवायचा नैतिक अधिकार नाही आणि परवानगी पण नाही. आता हा फिरोज मुलगा आहे, हा असा का निर्माण झाला? तो सर्वोदयात वाढला, बाकीचे हिंदू त्याशी चांगले वागले, त्याला सगळं कळायला लागलं. आता हे झाल्यामुळे तो निर्माण झाला ना. असे किती प्रॉडक्ट आपण तयार करू. तो खरा मुस्लिमांच्या मध्ये जर दोष दिसले तर उपाय हा आहे, माझे दोष काढून त्याच्या माझ्यामधलं अंतर कमी करणं आणि त्याला बंधुभाव निर्माण करणं. आणि त्या बंधुभावातूनच नवा भारतीय माणूस भारतीयत्वाला पुष्ट करणारा हा निर्माण होईल. त्याशिवाय हे होणे शक्य नाही. तर ह्या दृष्टीनं आपलं मंथन झालं. बऱ्याच वेळेला मंथन एक तर आपल्या डोक्यातल्या अनुभवावर होतं किंवा फार फार तर वर्तमानपत्र आणि मीडियावर होतं. त्यांच्यामुळे जे आपल्या सारख्याच विचाराचे फिरोजभाई फिरून आले सगळीकडे, त्यामुळे त्यांचंही ज्ञान आपल्याला मिळालं. यामुळे आपण समृद्ध झालो की ज्यासाठी आपण अनुभव नाही घेतला. पण असं मग वाटत होतं मी गेलो आहे सिरियात, बहुतेक मी येते लेबानन सिरियाचाच भाग वेगळा, त्याच्यात कधी मध्येच आपण निर्वासित झालो असंही वाटत होतं. रामायणाची कथा फार रोचकपणे सांगतात ती, म्हणून एवढी रुजली आहे. तर खेड्यात रामायण लावायचं असलं तर ते उत्पन्नावर ठरतं. उत्पन्न खूप झालं तर म्हणतात की आता साधा सुद्धा नाही, पुण्याचा बामण आणू म्हणतात. लोक चर्चा करतात. पण रामायणात वनवास आला तर पोते घालून अंगावरून बाहेर वनवासाला जाऊन येतात. त्याला गावातले लोक नवे कपडे करतात. म्हणजे जे सांगितलं जातं ते जगत राहतात लोक, तात्पुरतं कृत्रिम का असेना. तर मगा त्याच्या भाषणामध्ये त्याच्या मुद्द्याबरोबर फार असं काही मोठं भाषण मोदीसारखं नव्हतं फिरोजसारखा. तरी पण तो एक्सपिरियन्स, तो ज्या वेळेला तिथलं सांगायचं तेव्हा आपण सिरियात जायचो. तर हे छानपैकी अनुभव होता. आता मीडियाचं जे आहे ते लक्षात घ्या काय आहे. मीडिया हे प्रकरणही ज्यूंचं आहे. इस्रायलच्या मागे अमेरिका असतो याचं कारण अमेरिका ज्यूंच्या हातात आहे. मग इस्रायली त्यांची लिटमस टेस्ट आहे. एक जण इस्रायलमध्ये उभा हे बोलला काही तर तो प्रेसिडेंट होऊ शकत नाही. ते त्याच्यामागे मीडिया लावतात, त्याच्यामागे गुप्तहेर लावतात आणि तो कसा चरित्रहीन आहे असं ऐन इलेक्शनला उभा राहिला उमेदवाराला पाडतात. इतके ज्यूंची लॉबी स्ट्रॉंग आहे. आणि हे कोण आहे? यांचे सगळे बापजादे जर्मनीमध्ये छळछावणीत राहत होते. आता बघा, भांडवलदार झाल्याशिवाय सत्ता मिळत नाही. आणि हिटलरसारखं तर परत होता कामा नाही. आणि भांडवलशाहीमध्ये क्रायसिस येतेच प्रसंग आणि त्यामुळे सत्तेला फॅसिस्ट व्हावंच लागतं. म्हणजे मोदी जितके अडचणीत येतील पुढच्या काय 1.5 वर्ष जे आहेत तोपर्यंत तितके ते फॅसिस्ट बनतील.
तितके देशात दंगेधोपे होतील, कारण त्याचा दुसरा मार्गच नाही. पण जीवना आधी कळलेलं आहे की याला आणखीन काही मार्ग शोधावेत. आपण वर्चस्व तर गाजवायचं, पण जीव त्यांना आठवण असल्यामुळे जीवसारखं छळछावण्या नकोत. म्हणून मग त्याऐवजी ते मार्केट एक्सपांड करायला गेले. हे टाळता येईल का क्रायसिस? कारण तुम्ही लोकांचं लुटलं की लोकांचे खिसे रिकामे होतात. लोक म्हणतात कर तू किती वस्तू तयार करायचे, मी घेणारच नाही. मॉल रिकामे राहतात, ते तर येऊ नये म्हणून मग सगळ्या जगामध्ये मार्केट असावं, आणि जिथं मोठं मार्केट आहे त्याच्यावर जास्त डोळा असतो. तर कदाचित भांडवलशाहीचा मरण पुढे 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 ढकललं जातं. तर त्याच्याकरता त्यांनी मीडिया काढलेली आहे, आपल्या मेंदूचा कब्जा घेण्याकरता. ते मगा कोणतरी सांगितलं, ते तर मी पण अनुभवते. लावलं कुठे हिंदी चॅनल तर 4 ते 5 चॅनलवर सारखं अँटी मुस्लिम दाखवलं जातं. काही ना काय कुठून काय काढतात काय माहीत नाही, पण ते अतिरेकी काय, अमुक काय, ते जगात काय चाललं, आयसिस म्हणजे असं सैतान वगैरे. लहान लहान मुलं घाबरतात ना, लहान मुलांनी ते पाहिलं तर कायमच मुस्लिम देश पक्का होऊन जातो. तर असं नसतं. या मोहसिनला मारणारा जो ते हिंदू राष्ट्र आहे त्याचा जो धनंजय देसाई, हा जो माझ्याकडे यायचा, काही कारणाने मी त्याची दोस्ती केली. तर म्हणलं धन्या तू भारी बाबा, अगदी एवढं पार्ल्याहून आला आणि पुण्यात दंगे घडवतो वगैरे. तर त्यांनी एकदा मला सांगितलं, तो म्हणला असं एक काकाच म्हणायला लागलो, तो इतक्या जवळ गेलो होतो मी. तर तो म्हणाला की ज्याचे घरामध्ये आईवडिलांपैकी एकच आहे कोणतरी, किंवा वडील आईला खूप मारतात वगैरे, असे सिंगल पॅरेंटवाले मुलं हडपसर, तर तो भाग सांगितला त्याने. कोणता तो? त्या खराडी माझी नाही, खराडी सांगितलं मला. तर तिथे असे खूप मिळतात म्हणे. काय 5-50 माणसं दंग करायला कुठे जास्त लागतात, 5-50 पुरतात. ती आधीच मुळं वैतागलेली असतात. तर त्यांना मी सांभाळतो, त्यांना बंधुभाव देतो. आणि मग आपलं काहीतरी हिंदू राष्ट्र वगैरे, ते म्हणतात काय नाही बुवा, आमच्या लीडरला कळलं म्हणजे झालं काम, बॉसला कळलं म्हणजे पुष्कळ काही करतात. त्यात काय अवघड नाही, म्हणजे फार सोपं असतं दंगा घडवून. तर अशा पद्धतीनं हे डिस्टॅबिलाइज करण्याचं इंटरनॅशनल जे कट असतो त्याला सामील व्हायला आपल्यामधले लोक बरेचसे अडकलेले असतात. आणि ते धर्माच्या मध्ये अडकलेत म्हणून फार अवघड बाहेर काढायला असंही नसतं. पण तुम्ही संवाद केला पाहिजे त्यांच्याशी. असे काढू शकतो आपण बाहेर, चांगली माणसं आहेत. म्हणजे असं माणूसच तसा बरा प्राणी आहे, पण त्यात दोन्ही असतं. भगवान असतो, सैतान असतो. सैतानाला टोले मारावेत आणि भगवानाची आरती करावी, म्हणजे भगवानाला आरतीची गोडी लागते आणि मग तो तसं वागायला लागतो. तुम्ही लहान मुलाला कसं वाढतात बघा ना, वा 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 तू छान केलं की ते रिपीट करतो. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हे करता येतं. हे सगळ्या बाजूनं मंथन झालं, पण म्हणूनच आपल्या मेंदूमधले नवे सेल उघडे झाले, त्यामुळं नवे प्रश्न पडले. तर नवे प्रश्न पडणं हे सुद्धा चांगलं आहे. तर फिरोजबाईंचं भाषण चांगलं झालं, मंथन झालं. या मंथनातून अमृतही निघू शकतं आणि विषय निघू शकतात. कारण काही जण समजा इथं असं असतील की नाही नाही मुसलमान वाईटच आहेत, तर ते म्हणतील मुसलमान चांगलेच असं सांगण्याच्या कार्यक्रमाला इथून पुढे मी जाणारच नाही, माझ्या डोक्यामध्ये फार त्रास होतो, असंही होऊ शकतं. पण ठीक आहे, त्यांच्या आंदोलन त्यांच्या भाषणाच्या मागे आमची जी भूमिका होती ती आम्हाला पूर्ण आमची अपेक्षा पुरी झाली, म्हणून त्यांना धन्यवाद, शुक्रिया. फिरोजबाईंचे पुन्हा पुन्हा धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांनी या कार्यशाळेमध्ये चांगला सहभाग घेतला, तुमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद. उद्या आपण सकाळी 11 वाजता राज कुलकर्णी यांच्याबरोबर असंच एक सत्र ठेवलेलं आहे. आणि जसं आपण इस्लामबद्दल गैरसमज बघतो तसे गांधींबद्दल गैरसमज पसरवले जातात आणि त्यानंतर सगळ्यात जास्त पसरवले जातात ते नेहरूंबद्दल. तर उद्या नेहरूंना समजून घेण्याचा दिवस आहे सकाळी, आणि संध्याकाळी त्यांचं व्याख्यान आहे. आज संध्याकाळी कोजागिरीच्या निमित्ताने कवी संमेलन आहे. आणि 7 तारखेला म्हणजे परवा गुजरातहून जिग्नेश मेवाणी, JNUतून डॉक्टर मिलिंद आव्हाड आणि तुषार गांधी येणार आहेत. आणि रविवारी या सप्ताहाचा समारोप होईल. उद्या जवाहरलाल नेहरू सांगणारे हे राज कुलकर्णी तरुण आहेत, म्हणजे कोणीतरी जुना नेहरूंच्या काळातला माणूस आहे तो सांगतोय असं नाही. म्हणून उद्याचं मी सांगतो की जरी काही कार्यक्रम असले
तरी थोडंफार रिप्लॅनिंग करून याच तुम्ही. कारण असं आहे की इथे एक मीटिंग झाली होती, ब्राह्मण संमेलनच झालं होतं पुण्यात, आणि तिथे तो नथुरामचं काम करणारा नट शरद पोंक्षे होता. तर शरद पोंक्षेला साक्षात नथुरामचं हे बघून, रूप बघून त्याला हारबीर घालतात, त्याच्या पाया बिया पडतात, म्हणजे नथुराम आता नाही आहे तर नथुरामला पाया पडण्याचं पुण्य लागावं म्हणून. तर तिथे त्याने एक महान विचार सांगितला. मी जरी नथुरामचा, तो खरंच नथुरामचा पूजक आहे, तरी मला असं वाटतं की नथुराम भाऊनी ही चूकच केली. गांधीला काय म्हातारं मेलच असतं की 1 वर्षात. त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूला मारायला पाहिजे होतं असं जाहीररित्या म्हणलं. आणि पुण्यातल्या बऱ्याच घराघरामध्ये हा संदेश गेला की नथुराम भाऊ चांगलाच होता, फक्त त्यांनी नेहरूंना मारायचा विचार आधी करायला पाहिजे होता. तर त्याच्याकरता मुद्दाम समजून आहे की खरोखर नेहरू हा हत्या करण्यासारखा माणूस होता का देशाला काय उपयोगी होता. संध्याकाळी व्याख्यान आहे आणि सकाळी अशा प्रकारचं सत्र आहे, आणि 7 तारखेलाही सकाळी हे सत्र आणि संध्याकाळी परिसंवाद आहे. सर्व कार्यक्रमांना आपण यावं. पुन्हा एकदा आभार आपले फिरोजभाई, आणि हा कार्यक्रम संपला.